أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. صدق الله العظيم. मौजूद हजरात, अब मैं मेरे साथी जनाब मोहम्मद गानी मोहतशम से गुजारिश करता हूँ कि वो फ़हरिस्त के मुताबिक हमारे मौजूद मेहमानान को स्टेज पर मदऊ करें. Thank you so much, Mr. Atikur Rahman. My honor and pleasure to welcome the guests of today's function. To start with, I request Janab Inayatullah Shabandri Sahab, the President of the Karwar District for NNO Nammanadu Okatu, to please take to the center stage, please. Secondly, I request Janab Atikur Rahman Munir Sahab, who is the Secretary General of the Bhatkal Muslim Jamaat Khalij Council, to come and take a seat. I also request Janab Qamar Sada Sahab, the Overseas President from Jeddah Jamaat, to please come and take the center seat. I now request Janab Hussain Haikadi Sahab, who is the Organizing Secretary for NNO Central Committee based from Kundapur, to come also and take the seat on the stage, please. Now I request Mr. Abdul Sami Sahab, Janab Abdul Sami from Baindur, who is the Taluk President for NNO. Please take your seat on the stage. Following with, I request Janab Mustaq Bedwe Sahab, the President of Nammanadu Okatu from the Udupi District, who is also from the Central Committee, to please come and take the seat on the stage. Now I request Janab Abdul Rakib MJ Sahab, the General Secretary of Majlis-e-Islah wa Tanzeem, to also take the stage seat. I request Janab Maulana Ilyas Sahab Nadwi, the General Secretary of Maulana Abul Hassan Ali Nadwi Academy, Bhatkal, to come and please take your seat on the stage. I request Maulana Zamir Ahmad Sahab Rashadi, General Secretary of Nammanadu Okatu from Udupi, also who is the district for the Udupi district, President for the Udupi district. Please come and take the seat on the stage. Following which, with all due respect, I now request Janab SM Parvez Sahab, the President of Bhatkal Muslim
Bhatkal Majlis-e-Islam wa Tanzeem to please come and take the seat on the stage. Now I request Mr. Abdul Hamid Mangalore, the treasurer of Namma Nadu Okadu, also who is from the Central Committee, please, you are requested to come and take a seat on the stage. We also have Janab Suleiman Bangali Sahab, who is the president of the Markazi Nakhuda Jamaat, to please come and take the seat on the stage. I request Maulana Azizur Rahman Sahab, with all due respect, the president of the Bhatkal Muslim Jamaat Youth Federation, please come and take your seat on the stage. We also have amongst us Janab Dr. Aminuddin, who is the president of Mudeshwar Jamaat. Please, you are requested to come and take your seat on the stage. Following which, I request Janab Abdul Qadir Sahab, who is the district member of Namma Nadu Okatu, to please come and take your seat on the stage. I also request Janab Tawfiq Berry Sahab, the president of SDPI for this district, please come and take the seat on the stage. I also request the district member, Janab Shakir Havaldar Sahab, to please come and take the seat on the stage. So I request Atikur Rahman Sahab to continue with the further proceedings. I missed out, I'm so sorry about this, I've missed out on another very eminent personality who is also an important figure for today's function. I request Janab Habibullah Sahab Muhtisham, who is the convener of today's function, please come and take the seat on the stage, please. नाज़रीन, इंशाअल्लाह हम बहुत ही मुख्तसर वक्त है, बड़ा मुश्किल काम लगता है कि मगरिब की अज़ान से पहले प्रोग्राम को ख़त्म करना, लेकिन हमारे जो मुक़र्रिरीन हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो अपने वक्त पर बात ख़त्म करें। तवील गुफ्तगू का यहाँ पर अभी हमको भी वक्त नहीं है। इस आज का मैं समझता हूँ कि ये दिन, अब तो यहाँ पर मुख्तसर लोग हैं, लेकिन इंशाअल्लाह भटकल की आइंदा की तारीख़ में आज के दिन को एक यादगार और अहम दिन की हैसियत से इंशाअल्लाह लिखा जाएगा। किस लिए लिखा जाएगा, मैं एक पस मंज़र को सामने रख करके आपको ये बात बता रहा हूँ। इंशाअल्लाह हमारे मुक़र्रिरीन की ज़ुबानी आपको इसकी तफसीलात मालूम हो जाएगी। मैं सबसे पहले हमारे इस ज़िला कारवार के इस नम्मा नाडा उकुटा के सदर जनाब इनायतुल्लाह शाबंदरी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो मुख्तसरन इस्तक़बालिया कलिमात पेश करें और इसके अग़राज़ व मक़ासिद से भी मुख्तसरन आप सबको आगाह करें। जनाब इनायतुल्लाह शाबंदरी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नअबुदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आज के जलसे के सदर साहब और नम्मा नाडू वकुटा के तमाम ज़िले के ज़िम्मेदार हजरात और मजलिस इस्लाह तंज़ीम के जनरल सेक्रेटरी हमारे अब्दुल रकीब साहब और हमारे मुडेशर जमात के सदर जनाब डॉक्टर अमीनुद्दीन साहब और खलीज जमात के सेक्रेटरी जनरल जनाब अतीकुर रहमान मुनीरी साहब और हमारे मौलाना इलियास साहब चेयरमैन अबुल हसन एकेडमी, मौलाना अजीज़ुर रहमान साहब फेडरेशन के सदर, तेंगुंडी नाखुदा जमात मरकज़ी नाखुदा जमात के सदर जनाब सुलेमान बंगाली साहब और तमाम स्टेज में बैठे हुए तमाम हजरात और तमाम मसाजिद के सदर साहिबान और सेक्रेटरी अहदेदारान, तमाम जमातों के ज़िम्मेदारान, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम इस वक्त एक नई तंजीम एक इंट्रोड्यूस करें, इसका तारीफ़ी जलसा है नम्मा नाडू वकुटा। ये तंजीम मंगलूर से स्टार्ट हुई, तो हम लोगों ने एक मीटिंग में मुझे इनवाइट किया था उधर मंगलूर में, और उडुपी में भी एक बार जाना हुआ, तो मैं देखा उनका कॉन्सेप्ट और उनकी काम और उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा हम लोग मंगलूर में तो हमारा सेटअप हो गया पूरे डिस्ट्रिक्ट का और उडुपी ज़िले में हो गया, अभी आप कारवार ज़िले जाना है और मैसूर शिमोगा ज़िले में भी हम लोग तैयारी हो रही है।
तो हमको उन्होंने कारवार ज़िले का एक सदर के हैसियत नॉमिनेशन हो गया। तो मैं बड़ी खूबी से उनको कबूल किया, क्योंकि अच्छा काम है, सेवा कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। लोग खिदमत करने अलग अलग तरीके होते हैं, कोई मस्जिद बांधता है, कोई मदरसे बांधते हैं, कोई घर बांधता है, कोई शादी ब्याह के काम करता है। हर आदमी अलग अलग अंदाज से खिदमत करते हैं। ये इनका एक तरीका अलग रहा है। ये लोगों को नौकरी देना, लोगों को गवर्नमेंट के फैसिलिटीज़ को कैसा हासिल करना, ये सब नहीं, ये भी एक खिदमत है। ये खिदमत करने के लिए नम्मा नाडू वक्कुटा की तंजीम कायम हुई बेंगलुर में, अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल हो गया। और उसके डिटेल हमारे मौलाना ज़मीर अहमद साहब और हमारे बैंदूर से हमारे समी अब्दुल समी साहब वो डिटेल आपको कहेंगे। उनकी बात सुनने के बाद ये हमारा वो वक्कुटा क्या है आपको समझ में आएगी। उसके बाद और 2 साथी हमारे बात करेंगे, फिर लोकल हमारे भटकल के जिम्मेदार हमारे तंजीम के सदर या हमारे खलीज कौंसिल के सदर मौलाना इलियास साहब फिर बाद में बात करेंगे। उसके बाद में आप लोग हमारा पूरे प्रोग्राम होने के बाद चर्चा हो जाएगा। आप लोग भी कुछ सवाल कर सकते हैं और कुछ भी करके इंशाल्लाह आखिर में हम इंशाल्लाह एंड में पहुंचेंगे। और आपका भी कुछ आप ऊपर आके बात भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। इंशाल्लाह टाइम हमारे पास कम है, आप टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। मगरिब की नमाज के बाद भी हमारा ये कंटिन्यू प्रोग्राम रहेगा, ये मैं पहले ही आपको अनाउंस करता हूँ। और लोग थोड़े आए हैं, मगर हमने तकरीबन मेरे ख्याल में 75 मसाजिद को, भटकल तालुका के 75 मसाजिद को बाय लेटर हमने दावत दी थी, पूरा डिटेल उसमें था। तो फिर आदमी इतने आए हैं, बस अल्लाह का शुक्र है। और स्पोर्ट्स सेंटर को भी हमने अलग दावत दी थी, भटकल से मुंडेश्वर, ये हमारे तालुका की मीटिंग है। बहरहाल अब इतने आदमी आए हैं, अल्लाह का शुक्र है। मैं अभी यही कहना चाह रहा हूँ कि वो उस दिन से हमको जब भी जवाबदारी दी, 4-5 महीने हुआ, बाद में पैंडेमिक प्रोग्राम कोरोना महामारी आई, वो समय मेरा थोड़ा प्रोग्राम पीछे डाला। अभी हम लोग 4 दिन पहले 29 को हमारा काफिला नूर मस्जिद से निकला, हुन्नावर में पूरा प्रोग्राम किए। पूरे हुन्नावर के 20-25 जमातों को एक ही हॉल में जमा करके अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मीटिंग हुई। और उससे आगे काफिला बढ़ते कुमटा में गए हम लोग। कुमटा में भी हमारी सारी पूरी जमातों ने एक ही जगह बैठ के, मतलब जमातें मतलब मसलक के जमात रहते हैं, यहाँ के बहुत मुश्किलात है हमारे उत्तर कन्नड़ जिला में, कारवार डिस्ट्रिक्ट। फिर भी अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत आदमी जम गए और बात को समझ गई। बहरहाल कुमटा में भी अच्छा प्रोग्राम हो गया, अंकोला में भी अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम हो गया। उसके बाद में नाइट आउट हम कारवार किए। कारवार से हमारे काफिला सुबह में 10 बजे प्रोग्राम था, उसको प्रोग्राम को वहाँ पे भी बहुत दिक्कत हुई। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी एक अच्छा माहौल से दोनों जमातों को बिठा के, हिस्ट्री के पहली बार कारवार में दोनों जमात अपने सामने बैठ के बहुत खुशी से प्रोग्राम को सुना और कमेटी बना के हमारा काफिला सीधा हलियाल में गया। हलियाल में हमको मगरिब की नमाज के बाद प्रोग्राम हुआ। उसके बाद में 9 बजे दांडेली में प्रोग्राम हुआ, दांडेली में हाल्ट करे हम लोग। फिर दूसरा दिन मुनगोड़ में इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम हो गया, वहाँ में भी पूरी जमातों का बात होगी। और दोपहर में हमारा प्रोग्राम सिरसी में था, वहाँ में कुछ प्रॉब्लम हो गया। वहाँ की सिरसी के अहले हदीस की जमात तकरीबन एक 20-25 जमातें अहले हदीस के हैं, अहले सुन्नत की भी 18-20 जमातें हैं। दोनों अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक हफ्ता पहले जाके उनसे बात करके, दोनों भी अलग अलग करने के मूड में थे, उनको बिठा के एक ही हॉल में, शादी हॉल में हमने बातचीत की और वो लोग राजी भी हो गए, ऐलान में हो गया। और हम लोग जहाँ पहुँचते हैं उसी टाइम पे किसी बंदे ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया, यहाँ पे जलसा हो रहा है, 2 जमातों का मिलकर जलसा हो रहा है और कोर्ट ऑफ कंडक्ट है, इधर एक MLC का इलेक्शन है। तो हमको मजबूरी से वहाँ पे 4-5 पुलिस घेराव किया, हम लोग हॉल में नहीं गए। बहरहाल हम लोग डायरेक्ट मस्जिद में गए। वो एक प्रोग्राम हमारा पोस्टपोन हुआ। कोर्ट ऑफ कंडक्ट हमको नहीं लगता है ये हमारा राजकीय हमारा पार्टी नहीं है, फिर भी उनको इन्फॉर्मेशन देना था। बहरहाल वो एक प्रोग्राम हमारा कैंसिल हुआ। उसके बाद में हम लोग सीधा येल्लापुर चले गए। येल्लापुर से हम लोग आज सवेरे सिद्धापुर में प्रोग्राम करके आज हमारा लास्ट प्रोग्राम, आखिरी प्रोग्राम ये भटकल में हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें हमारे मैंगलोर के जिम्मेदार हजरात यहाँ पे हैं, नम्मा नाडू वक्कुटा के, और हमारे उडुपी जिले के जिम्मेदार हजरात हैं। तो इसके पीछे NRIs लोग भी है, जैसे कि हमारे भटकल में खलीज काउंसिल है, हमारे आतिकुर रहमान सेक्रेटरी जनरल है, उनकी एक बड़ी टीम है 9 जमातों की। ऐसे खलीज के लोग भी यहाँ पे, ये नम्मा नाडू का वक्कुटा का मेन अध्यक्ष है, दुबई में रहते हैं सलीम भाई, वो हमारे लोगों से कांटेक्ट में, और दुबई में, मस्कत में और अमेरिका में, पूरी जगह पे वो लोग वर्ल्ड में, वो सब हमारे इस तंजीम में जुड़े हुए हैं। बहरहाल इनका यही मकसद है कि हमारे लोगों को नौकरी देना, और हमारे लोगों को, हमारे भटकल में तो आपको मालूम है अच्छे अच्छे ग्रेजुएट हैं, डबल ग्रेजुएट हैं, MBBS के, MD किए और अपने घर में काम करते हैं, अच्छी अच्छी बिरयानी पकाते हैं। ये खुद शर्म आती है। मेरे घर में मेरी भी, हमारे भी औलाद, हमारे भाई की लड़की MD बनाए, हमारे भाई ने पूरी ज़मीन जायदाद बेच के उसको MD किया, और वो मेरे भाई की लड़की अभी घर में है। उनको शौक नहीं, अवेयरनेस नहीं है
इंशाल्लाह हम लोग इंशाल्लाह थोड़े दिन के बाद एक जॉब अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह बड़े हॉल में। तकरीबन 200 आदमी का 300 आदमी का हम लोग प्रोग्राम करेंगे यहाँ पे, जिसमें हमारे बिरादर ने हिंदू मुस्लिम सब लोग रहेंगे इंशाल्लाह। और उसका प्रोग्राम के बाद एक अवेयरनेस पैदा हो जाएगा और उसको क्लासेस दिए जाएंगे। जब भी जॉब देने का ये सब डिटेल बोलेंगे। मतलब 15 हमारे डिपार्टमेंट है यहाँ पे, खाली पुलिस और स्कूल का नहीं है, स्कूल का भी हमारे प्राइवेट स्कूलों में लोगों ने बहुत अच्छी तादाद में स्कूल में पढ़ते हैं और स्कूल में पढ़ने के बावजूद उनको पगार तनख्वाह बहुत कम है। ऊपर मौलाना ऊपर बहरहाल उनको थोड़ी तनख्वाह, अगर उनके 25 टीचर को भी हम बेंगलुरु में इंटरव्यू को भेजेंगे और 4 या 5 टीचर अगर से सक्सेस हो गए 35-40 हज़ार इंशाल्लाह स्टार्टिंग में उनको पगार है। तो किसको नहीं चाहिए? हमारे कॉलेजेस में हमारे लेक्चरर बहुत हैं, उनको स्टार्टिंग में 50-60 से स्टार्ट है। बहरहाल ये सब मामला हमारा कंटिन्यू रहेगा इंशाल्लाह। हम अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे, उसके बाद में टीम आएंगी, जजेस हजरात, हमारे पुलिस लोग, पुलिस ऑफिसर्स और हमारे लॉयर लोग, मुस्लिम लोग। यहाँ पे एक लॉयर थी गवर्नमेंट पीपी मुमताज़ बानू, आपको मालूम है, जो कोर्ट का चक्कर लगाते हैं उनको मालूम है। मुमताज़ बानू के नाम पे यहाँ पे एक लेडीज थी गवर्नमेंट पीपी। अभी 1 महीना पहले मुडबदरी मंगलूर में उडुपी जिले में जज बन के आई है और नम्मन नाडू के मेन फाउंडर है वो। और ऐसा बात करती है लोगों को, ऐसा समझाती है नौकरी के बारे में, आप सोच भी नहीं सकेंगे इंशाल्लाह। वो सब हजरात को यहाँ ला के हम इंशाल्लाह प्रोग्राम बनाएंगे। ये थी मेरी खुलासा मैं बताया हूँ। अभी हमारे ज़मीर मौलाना और हमारे लोग फिर बात करेंगे। आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ या आप एंड तक रहिए। मगरिब की नमाज इंशाल्लाह यहाँ पढ़ेंगे, बाजू में मस्जिद है, उधर ऊपर नमाज का इंतज़ाम किया है, कुछ टेंशन नहीं है इंशाल्लाह। आप लोग हमारे साथ में नमाज़ पढ़ के नमाज के बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। और कुछ बात कहनी थी, मेरे अर्जेंट है और हमारा टाइम भी बहुत कम है इंशाल्लाह। मैं आप लोगों का, सबों का, पूरे जमातों का मैं और एक बार इस्तेक़बाल करता हूँ और सबों का भी शुक्रिया भी अदा करता हूँ आपकी हमारी दावत पर। पूरे हमारे भटकल तालुका की जमात, मुडशर से लेकर भटकल, शिराली, तेंगुंडी, सब लोग यहाँ पे है। मेरे नज़रों में सब लोग देख रहे हैं। और आप लोग जो हजरात आए हैं, जवाबदार हजरात आए हैं, हम चाह रहे हैं कि हर जमात, हर मस्जिद वाले ये काम होना चाहिए। हर मस्जिद ये सब बोलेंगे। अभी मैंने एक बात बोली तो और एक बार आ रहे, इनका मेन टारगेट है मस्जिद और मूवमेंट। हर मस्जिद में कंप्यूटर रहना चाहिए, हर मोहल्ले में अपनी फिक्र कर, अपने हर एरिया में क्या काम हो रहा है, आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, अभी तुम्हारे को स्कॉलरशिप, ये सब बैठे बैठे होते हैं। थोड़े लोगों को मालूम है, हमारे थोड़े हजरात अपने अपने लोग करते रहे, नहीं ऐसे नहीं है कि कुछ को मालूम नहीं है, मगर बड़े तादाद में हर मोहल्ले में ये काम होना है। हर स्पोर्ट्स सेंटर, अपने स्पोर्ट्स सेंटर में कंप्यूटर को लेके काम करना शुरू करना पड़ेगा इंशाल्लाह। ये काम हो जाएगा इंशाल्लाह। और मैं आप लोगों का और एक बार इस बार मेरी बात को मैं ख़त्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Thank you so much, sir. It's been really a great pride. You've been basically doing a selfless service to the society, and this is one of the places that you are putting in your efforts. Thank you so much. Really honored to have you. Now, moving on, we have amongst us another very special personality who has been tirelessly working on this particular platform. We have Maulana Zamir Ahmed Saab on the stage, who is also the president of Namma Nadu Okkuta for the Udupi district. Now he will be coming in and putting out the details of the organization before you. Janab Maulana Zamir Ahmed Saab, please. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursaleen wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. सबसे पहले मैं अल्लाह का नाम लेता हूँ, उसका शुक्र अदा करता हूँ, उसकी हम्द व सना बयान करता हूँ। उसके बाद सरकार दो आलम फ़ख्र बनी आदम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार आली में हदे दरूद व सलाम पेश करते हुए अपनी मुख्तसर गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। स्टेज पर जलवा अफरोज़ मकामी ज़िम्मेदारान और NNO के दक्षिण कन्नड़ा और उडुपी के ज़िम्मेदारान और मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना इलियास साहब नदवी दामत बरकातुहुम, और इसी तरह नम्मनाडा ओक्कुटा NNO के उत्तर कन्नड़ा सदर जनाब इनायतुल्लाह शाहबंदरी साहब, आप हजरात के सामने ज़िला कारवार के सदर ने नम्मनाडा ओक्कुटा के मकासिद और अगराज पर मुख्तसर उन्होंने रोशनी डाली है। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए चंद बातें मैं आपके सामने रखूँगा। इंशाअल्लाह आइंदा दिनों में फिर जब हम मिलते रहेंगे तो फिर और मज़ीद बातें और फिर नम्मनाडा ओक्कुटा के अगराज व मकासिद और काम करने का तरीक़ा आप हजरात के सामने पेश होता रहेगा। सामने निज़ाम,
आप लोग इस वक्त हमारे मुल्क भारत के हालात से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। मुसलमान किन हालात से गुज़र रहे हैं और मुसलमानों पर किस तरह की परेशानियां लाहिक हो रही हैं और किस तरह के मजालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, इससे आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। और दूसरी तरफ आप इस बात से भी वाकिफ़ हैं कि मुसलमानों के इत्तिहाद का शराज़ा बिखर चुका है। मुसलमान मुख्तलिफ़ मसालिक और मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र, मुख्तलिफ़ पार्टियों, जमातों और तंजीमों में बटे हुए हैं। और आप ये भी जानते हैं कि हमारे पास बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो बासलाहियत हैं, लेकिन सरकारी नौकरियों में और सरकारी जो जॉब्स है उसमें हमारा परसेंटेज बहुत कम है, जिसकी वजह से भी बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। और उसी के साथ हम लोग नावाकिफ़ियत की बिना पर सरकार की स्कीमों से और सरकार की जो सहूलियात हैं उससे इस्तिफ़ादा नहीं कर पाते। चुनांचे इन तमाम चीज़ों को देखते हुए दक्षिण कन्नड़ा और ज़िला उडुपी के कुछ प्रोफेशनल्स जो NRIs में से भी हैं और हमारे इलाके में भी इस वक्त डॉक्टर, इंजीनियर और मुख्तलिफ़ फील्ड में काम कर रहे हैं और NRI भी हैं, मुख्तलिफ़ ममालिक में खिदमात अंजाम दे रहे हैं और वेल सेटल हैं। उन्होंने फ़िक्रें की अपने इलाके के एतबार से, ख़ास करके कोस्टल बेल्ट के एतबार से, कि हमें एक तो मुत्तहिद होना है और सरकारी नौकरियों में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अफराद को दाखिल करना है और फिर मस्जिद को मरकज़ बनाकर मस्जिद के तहत में आने वाले ख़ानदानों और अफराद को खिदमात फ़राहम करना है। इस सिलसिले में एक इदारा कायम किया गया नमनाड़ा उक्कुटा के नाम से। फिर दक्षिण कन्नड़ा के 7 ताल्लुकात में इसके यूनिट्स बने। फिर उसके बाद ज़िला उडुपी के 7 ताल्लुकात में इसके यूनिट्स बने। फिर शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में प्रेसिडेंट को मुकर्रर किया गया, वहाँ मेहनतें जारी हैं। और हमारे जो प्रोग्रामात वहाँ पर होते थे उसमें जनाब इनायतुल्लाह शाहबंदरी साहब शिरकत करते थे, क्योंकि हमारे उडुपी और मैंगलोर में ये देखा गया कि सियासी समाजी तबके में जनाब इनायतुल्लाह साहब के रवाबित बहुत ज़्यादा मजबूत हैं और वो आते रहते हैं मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में। वहाँ के सियासी और समाजी अफराद से गहरे ताल्लुकात की बिना पर इन्हें मुख्तलिफ़ मजलिसों में, मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में दावत दी गई। जनाब इनायतुल्लाह शाहबंदरी साहब को हमारा कॉन्सेप्ट और हमारे अगराज़ व मकासिद और तरीक़ेकार पसंद आया, जिसकी बिना पर हमारा पहले से इरादा था कि ज़िला कारवार में मुनज़्ज़म काम हम शुरू करेंगे। भटकल माशाअल्लाह तरक्की याफ्ता एक शहर है, लेकिन पूरा ज़िला अगर देखा जाए तो उस एतबार से काम की ज़रूरत हमने पहले से महसूस की और जनाब इनायतुल्लाह साहब के सामने हमने ये बात रखी तो जनाब इनायतुल्लाह साहब इसके लिए तैयार हुए और फिर उन्हें ज़िला कारवार का सदर बनाया गया। और फिर ये तय हुआ कि उनकी क़ियादत में और उनकी इमारत में ज़िला कारवार का एक दौरा हो और वहाँ पर ताल्लुक़ सतह पर मुख्तलिफ़ तंजीमों, इदारों, मकातिब फ़िक्र और मसलक से मुंसलिक ज़िम्मेदारों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करके बात किया जाए और हमारे मकसद को उनके सामने वाज़े किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी का मैं इजहार करूँगा इस मौके पर। हम लोग पीर के दिन मस्जिद नूर से हज़रत मौलाना नूरुल अमीन साहब की दुआओं और नसीहतों के साथ रवाना हुए। हमारा काफ़िला रवाना हुआ और 10 ताल्लुकात का दौरा करते हुए, मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में शिरकत करते हुए और वहाँ पर लोगों से मुलाकातें करते हुए उनके ख़यालात को जानते हुए और फिर उनके साथ डिस्कस करते हुए हम सिद्धापुर से होते हुए आखिरकार हम यहाँ पर भटकल पहुँचे हैं। ये हमारा 4था दिन है और ये हमारा ज़िला कारवार के दौरे का आखिरी प्रोग्राम है। और हमें ये खुशी है कि ज़िला कारवार के जिन इलाक़ों में हम गए और वहाँ पर हमने देखा कि मुख्तलिफ़ मसालिक के लोग बहुत ही मजबूत तरीक़े से मुख्तलिफ़ हिस्सों में बटे हुए हैं, आपस में साथ में बैठने को तैयार नहीं है। और ये भी देखा गया कि जनाब इनायतुल्लाह साहब के असरात और उनके जो ताल्लुकात हैं, अगरचे कि वो सियासी और समाजी एतबार से जिसका हमें फ़ायदा ये हुआ कि उनकी जो शख्सियत है या उनकी जो पहचान है, उस पहचान के ज़रिए हमें लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना, एक प्लेटफॉर्म पर जमा करना हमारे लिए आसान हुआ।
कारवार के लोगों का ये कहना था, हमने देखा कि पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि एक जलसे में, एक प्रोग्राम में, एक टेबल पर मुख्तलिफ मसालिक के लोग, मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के लोग बैठकर सर जोड़ के उम्मत की फलाह बहबूद के लिए, मिल्लत की तरक्की के लिए सोच रहे थे। ये इस तरह हमने मुंडगोड़ में, सिद्धापुर में, इसी तरह सिरसी और दीगर ताल्लुकात में हमने देखा और लोगों ने हमारे कॉन्सेप्ट को पसंद किया, हमारे तरीक़ेकार को पसंद किया और लोग हमारे साथ जुड़कर काम करने के लिए तैयार हुए और हर ताल्लुक़ में हमने यूनिट्स बनाए और काम के अज़ाइम और काम की तरतीब बनाई गई और आइंदा दिनों में इंशाअल्लाह उन तमाम ताल्लुकात में बहुत ही मुनज़्ज़म अंदाज में इंशाअल्लाह नम्मनाड़ा वक्कुटा के इन के जो मकासिद हैं उन मकासिद के तहत काम करने का इरादा रखते हैं। अब ज़िला कारवार, ज़िला उडुपी, ज़िला मैंगलोर के जब ज़िली सतह पर जब ये मजबूत तंजीम बनेगी तो फिर 3 अज़ला का एक इत्तिहाद होगा और 3 अज़ला की एक मुनज़्ज़म एक तंजीम होगी जो मुसलमानों के मसाइल के हल के लिए हर तरह के वन कम्युनिटी वन वॉइस, जो यहाँ पर जैसे कि बैनर में आप देख सकते हैं, वन कम्युनिटी वन वॉइस के लिए ये मेहनतें हो रही हैं। सामने निज़ाम, हम लोगों की 2 तरह की कोशिशें हैं। हम लोग आपस में जब भी किसी महफिल में बैठते हैं तो हमारी 2 शिकायतें होती हैं और 2 तरह से हम रोना रोते हैं। एक ये कि सरकारी जॉब्स में और सरकारी जो सहूलियात मिलती हैं उसमें हम लोग पीछे हैं, यानी सरकार से हमें शिकायत रहती है कि सरकार की सहूलतें हमें नहीं मिल रही हैं, सरकार की स्कीमों से हमें फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है। और दूसरी शिकायत ये रहती है कि सरकारी नौकरियों में हमारा परसेंटेज बहुत कम है। अगरचे कि इस वक्त मुख्तलिफ़ तंजीमें मुख्तलिफ़ सतह पर काम कर रहे हैं, मदारिस अपना काम कर रहे हैं, मसाजिद अपना काम कर रहे हैं, तंजीमें अपना काम कर रही हैं और सोशल वर्क के जो इदारे हैं, जमातें हैं और ऑर्गेनाइजेशन से वो अपना काम कर रहे हैं और हम उन तमाम कामों का इकराम करते हैं और एहतराम करते हैं, कदर करते हैं और उन कामों की अहमियत को हम समझते हैं। ख़ास तौर पर भटकल में तंजीम की तरफ से जो काम हो रहा है, फेडरेशन की तरफ से जो काम हो रहा है, अंजुमन की तरफ से जो काम हो रहा है, वो काबिल तारीफ़ है और वो पूरे हिंदुस्तान के लिए नमूना है और उससे हम उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और उसकी कदर करते हुए नम्मनाड़ा वक्कुटा का एक मकसद ये है कि मस्जिद को बग़ैर किसी मसलक और मकतब फ़िक्र की तफरीक के बग़ैर मस्जिद को बुनियाद बनाकर कुछ प्रोग्राम तरतीब दिए जाएँ। तो एक तो ये है कि जब हमने ये काम शुरू किया, हमारे उडुपी और मैंगलोर ज़िला के बहुत सारे लोग जो गवर्नमेंट जॉब्स में हमारे मुस्लिम अफराद लगे हुए हैं और पुलिस डिपार्टमेंट में हैं और दीगर डीसी और एसी वगैरह ऑफिस में काम कर रहे हैं, उन्होंने खुशी का इजहार करते हुए अपने तौर पर बग़ैर किसी मुआवजे के और बग़ैर किसी नाम नमूद के अपने तौर पर वो खिदमत देने के लिए तैयार हुए। और ज़िला उडुपी में हमने माशाअल्लाह 1 साल के तजुर्बे के बाद हम यहाँ खड़े हैं, क्योंकि बग़ैर तजुर्बे के सिर्फ प्लानिंग लेकर हम आपके सामने आते तो हम ये बात करने में झिझक महसूस होती, लेकिन हमने माशाअल्लाह ये किया है और हम कर रहे हैं कि हमारे वो जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं मुस्लिम, वो हमें हमारे बच्चों को मस्जिद की सतह पर बच्चों को जमा किया जा रहा है और 9 से लेके डिग्री तक के जो भी बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं हम उनको जमा करके उनका 1 दिन का वर्कशॉप होता है। उस वर्कशॉप में उनके अंदर पहले उनको मोटिवेट किया जाता है, दिलचस्पी पैदा की जाती है, उनका जो लेजीपन है, उनकी जो लापरवाही है, उनकी जो सुस्ती और काहिली है और उम्मत की फलाह बहबूद के सिलसिले में उनकी जो लापरवाही है उसको ख़त्म करते हुए उनके मुस्तकबिल को संवारने के लिए उनको पहले उनकी हौसला अफजाई की जाती है और फिर 1 दिन के ट्रेनिंग के बाद उसमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पर उन्हें उसके जो माहिरीन होते हैं वो उन्हें बताते हैं और फिर उसके ज़रिए उनको व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए उन्हें जोड़ा जाता है और फिर मुस्तकिल रोज़ाना जूम एप्लीकेशन के ज़रिए उनका ट्रेनिंग होती है और सेशन चलता है। और फिर जैसे कि 15 डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट में, रेलवे का है, पोस्ट ऑफिस का है, पुलिस डिपार्टमेंट है, इस तरह। और ये हमारे जो अफराद सरकार में जो गवर्नमेंट में इंतज़ामिया में हैं उन्हें मालूम रहता है कि कौन सा कब वैकेंसियाँ आती हैं और कौन से वैकेंसियों के लिए किस तरह का इम्तिहान होगा, उसका पर्चा कैसे होगा, उसके मुताबिक वो तैयारी करवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 1-1.5-2 महीने की कोशिशों से उडुपी ज़िला के 4 से 5 लोग जो हैं वो पुलिस डिपार्टमेंट में दाखिल हो चुके हैं।
और इस तरह हम हर ताल्लुक़ की सतह पर इस तरह के वर्कशॉप मुनाकिद कर रहे हैं और बच्चों के अंदर बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं और बच्चों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा काम हम ये कर रहे हैं कि मस्जिद की सतह पर, हालांकि हर बस्ती में सैबर होता है और हमें मालूम है कि सैबर जाने से हमारे बहुत सारे जो गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं, बहुत से जो कार्ड हैं वो हमें मिल सकते हैं 10, 20, 25, 30 रुपये देने से, लेकिन हमारे कौम की लापरवाही है कि उस सिलसिले में वो तवज्जो नहीं देते। आयुष्मान कार्ड है, ऐसे बहुत से, लेकिन हम मस्जिद की सतह पर कैंप लगाते हैं और मस्जिद के तहत में जितनी जमातें और जितने ख़ानदान होते हैं पूरे के पूरे ख़ानदानों के वोटर आईडी बना के देना, और राशन कार्ड में अगर है तो उसको उसमें क्या करेक्शन है, आधार कार्ड है, इस तरह ख़ास करके ये जो आयुष्मान कार्ड है, माशाल्लाह कोरोना के वक्त में हम लोगों की तरफ से जो भी मेहनतें हुई उसका फ़ायदा ये हुआ कि 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख के जो बाज़ लोगों के बिल आए और आयुष्मान कार्ड जो 30 रुपये में बना है उसकी वजह से उन्हें फ्री में तमाम तरह के इलाज हुए, वरना तो प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ से जिस तरह लूटा जा रहा है वो आप देख रहे हैं। तो ये तो एक और हमारी कोशिश ये है कि मस्जिद को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जैसे मस्जिद एक मरकज़ हुआ करता था, सेंटर हुआ करता था, उसी तरह का आज के ज़माने में हम मस्जिद को सिर्फ नमाज के लिए, निकाह के लिए, अक़्द निकाह के लिए और तदफीन के लिए और दीनी इज्तिमात के लिए हम मुनाकिद करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। हमारी कोशिश ये है नमनाड़ा वक्कुटा के ज़रिए कि मसाजिद के प्लेटफॉर्म के ज़रिए तमाम तरह के काम अंजाम दिए जाएं और मस्जिद को मरकज़ बनाया जाए। तो इस तरह की और भी इंशाअल्लाह हम आपके सामने बातें आएंगी। तो इस तरह की एक कोशिश है, उम्मीद है कि आप लोग इंशाअल्लाह हमारा साथ देंगे और हमारी इन कोशिशों में आपका ताउन रहेगा। मैं दुआ करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि इन चंद कलिमात के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। जनाब फवाद सुकरी साहब, इस ग्रीन पैराडाइज़ के मालिक से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाएँ, हमारे मुंतज़िमीन की ख्वाहिश है। इसके बाद हमारे शहर के 2 मुअज़्ज़िज़ मेहमानान जो मसरूफ़ियत के बावजूद यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, एक तो हमारे जनाब अतीकुर रहमान मुनीरी साहब, सेक्रेटरी जनरल भटकल मुस्लिम खलीज कौंसिल, इनके घर में शादी के बावजूद इस प्रोग्राम की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए और मुस्तक़बिल में होने वाले इसके फ़वाइद को मद्देनज़र रखते हुए वह यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। मैं जनाब मोहतरम अतीकुर रहमान मुनीरी साहब से इल्तिमास करता हूँ कि वो मुख्तसरन अपने तासुरात का इज़हार करें। इसके बाद जनाब मौलाना साहब का इंशाअल्लाह बयान होगा। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मा बाद। डाइस पर मौजूद मेहमानान इकराम, अमायदीन कौम और मुअज़्ज़िज़ हज़रात, दिगर सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बड़ी मसरत का दिन है। ये काम जो कई अरसे से करना था लेकिन देरी से ही अब हम जाग रहे हैं, अल्लाह का फजल है, और मुत्तहिद हो रहे हैं कौम की खातिर, मिल्लत की खातिर। अल्लाह ताला इस काम को कबूल फरमाए। और जिस तरीके से अभी बताया गया, मैं समझता हूँ कि ये काम सबों की जिम्मेदारी है और जिन्होंने भी ये बेड़ा उठाया है, चाहे वो मंगलूर से के कारवार तक हो, और ख़ास करके हमारे उत्तर कन्नड़ा के लिए जिन्होंने मुंतखब किया हमारे सियासी समाजी लीडर इनायतुल्लाह शाहबंदरी साहब को, वाकई में मैं उनकी, जिन्होंने इनको मुंतखब किया है, उनकी सोच की तारीफ़ करता हूँ। माशाअल्लाह बिल्कुल सही और मुनासिब आदमी को उन्होंने मुंतखब किया है और चुना है। और मैं आज हमारी सबों की जिम्मेदारी है इस कार खैर में हम मुकम्मल साथ दें। और ये जो काम हो रहा है, ये नम्मा उकड़ा, बहुत अच्छी बात है। इस बात पर तवज्जो देते हुए अगर हम उनसे शाना बशाना चले और कौम की खिदमत की खातिर हम आगे बढ़ें तो इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से अल्लाह का ताउन भी रहेगा, अल्लाह की मदद भी रहेगी, अल्लाह की तरफ से नुसरत भी मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। ये किसके लिए कर रहे हैं? ये हमारे अपने लिए हम लोग कर रहे हैं और ये काम करने के लिए हमें जुड़ना है। मैं अकेला चलाता जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया, ये मिसाल बनना है। अब इसके लिए मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, हमारी मजलिस इस्लाह तंजीम अल्हम्दुलिल्लाह ये काम करती आ रही है। इसको मज़ीद मजबूत करने के लिए जो इक़दाम उठाया गया है हम उस पर लब्बैक करते हैं और आगे बढ़ने के लिए
पूरी की पूरी ताकत के साथ, कुव्वत के साथ अपने जो भी आपने तखय्युल, जो भी गर्ज़ ग़ायत लेकर आप आए हो, यहाँ पर उसकी वजाहत हुई। मैं लब्बैक कहता हूँ और कहता हूँ कि हम सब आपके साथ हैं, हम आपको पूरा साथ देंगे, कौम साथ देगी, आसपास के इदारे साथ देंगे और आपके साथ कदम ब कदम चलेंगे। और इज़ावी तौर पर मैं हमारी 10 जमातों का खलीजी मुल्कों में जो गुलदस्ता है, उस गुलदस्ते की राबिता सोसाइटी कहें या खलीज काउंसिल कहें, उसकी तरफ से भी आपको इंशाअल्लाह ये जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि मुकम्मल ताउन रहेगा। हम आपके साथ हैं, हम आपके फिक्रमंद हैं, हम आपके हर एक बातों के साथ लगे हुए हैं। अल्लाह करे हमारा सबों का जो ख्वाब है वो शर्मिंदा ताबीर हो जाए। बहुत बड़ा मिशन लेके निकले हैं, जिन्होंने भी ये तखय्युल लेके निकला हो, मैं जिंदाबाद कहता हूँ। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल कामयाबी दे, आप सबको लेके चलें, बेहतरीन नताइज बरामद होंगे, दुनिया याद रखेगी। और ये जो काम आप करने जा रहे हो, खास करके इन हालात में, इस माहौल में, इस मुल्क में जिसे हम अपनी जान से प्यार देते हैं, करीब से चाहते हैं और बहुत फिक्र रखते हैं, उसके लिए हमें खिदमत करने का अगर मौका मिल जाए, उससे रोजी रोटी भी हमारे आदमियों की बन जाए, इससे बढ़ के क्या बात है। अल्लाह ताला आपके मकासद में आपको कामयाबी से हमकिनार करे और सबों को मोहब्बत के साथ, इत्तिफाक के साथ, ईसार के साथ, कुर्बानी के साथ इन कामों में मुकम्मल आपका साथ देने के लिए मैं पूरे मिल्लत को, पूरी कौम को, हर एक बच्चे को, हर एक जवान को, हर एक बूढ़े को, सबको आवाज़ देता हूँ, अल्लाह की खातिर, लिल्लाह फिल्लाह की खातिर आप इस सब में शामिल हो जाएं। इंशाअल्लाह इबादत भी होगी और जो मकासद आपके हैं उसमें भी कामयाबी मिलेगी। अल्लाह ताला हमें एक इत्तेहाद के साथ, इत्तिफाक के साथ इन सबों को साथ लेकर, इन सबों का साथ देकर, इनके साथ रहते हुए बेहतरीन कारनामे अंजाम देने की तौफीक अता फरमाएं। और हमें इसमें मुकम्मल तौर पर इस बात का ख्याल रखना है कि अगर हमें आगे बढ़ना है, अपने मकासद पूरा करना है, तो बेहतरीन तौर पर जो कारनामे हम अंजाम देंगे वो अल्लाह के दरबार में कबूल होंगे इंशाअल्लाह। आज वादा करें कि इंशाअल्लाह इसमें कोई कमी बाकी नहीं रहेगी। जितने भी अहबाब यहाँ आए हुए हैं अपने साथ ये पैगाम लेके चलें कि इस काम को हमने तैयार कर लिया है, आगे काम करेंगे ईमान के खातिर, दीन के खातिर, अपनी उम्मत के खातिर, अपने देश के खातिर, अपने मोहल्ले के खातिर, अपने गांव के खातिर, जो भी हमसे होता है अपना वक्त दें। अल्लाह ताला सबों की खिदमत को कबूल फरमाए। मैं एक मरतबा दोबारा आपसे आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौका दिया और हमने 2 लफ्ज़ आपके सामने रखा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्रिया आतिकुर रहमान साहब, आपने साथ देने का। और पूरे खलीज काउंसिल, हमारी पूरे खलीज काउंसिल में नंबर नाडो कोटा के हजरात है, इंशाल्लाह आपकी जमातों को हम जोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अभी हम हमारे समी भाई बात करेंगे, कंप्लीट 15-20 मिनट बात करेंगे वो, मगर अभी आप 5 मिनट झलके देंगे। उसके बाद इलियास मौलाना, फिर हमारे जनरल सेक्रेटरी भाई, फिर नमाज के बाद फिर हमारा कंटिन्यू सेशन रहेगा। मेहरबानी करके रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपसे, नमाज के बाद हम लोग बैठेंगे, नहीं तो हमको घर बरार में जो कुछ बोलना है हम भूल जाएंगे। आप जल्दी 5-7 मिनट खत्म, नमाज के बाद फिर इन्होंने फिर कंटिन्यू बात करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्या मैं अपने भाइयों से ज़रा आगे आने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? प्लीज़ एक 5 मिनट के लिए आ जाएं, जो पीछे बैठे हैं आगे आ जाएं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। स्टेज पर तशरीफ़ रखे कौम के ज़िम्मेदार और जो है फ़िक्रमंद साथ हज़रात और मेरे भाइयों और बुज़ुर्गों, आप तमाम को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल समी है, बैंदुर से बिलोंग करता हूँ, नमनाड़ा वकोटा का एक सर्वेंट हूँ। जैसे इनायतुल्लाह शाहबंदरी साहब ने और फिर ज़मीर मौलाना ने जिस तरह से तारुफ़ किया नमनाड़ा वकोटा के बारे में, मैं मुख्तसर सा 5 मिनट लूँगा, जिसमें जो है प्रैक्टिकली तौर पर हम लोगों ने क्या किया है अपने इलाके में, उड़पी के इलाके में हो या फिर दक्षिण कन्नड़ा के इलाके में हो, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ ताकि आप भी इंशाल्लाह जो है इसको अपने इलाके में इख्तियार करें, हम सब मिलकर इसको जो है अंजाम दें इंशाल्लाह। तो जो है इसकी शुरुआत जैसे कहा कि 1 साल पहले हम जब अब्रॉड में रहते हैं तो हमारे जो है हिंदुस्तान की तरफ हमारी जो फ़िक्र होती है वो ज़्यादा होता है। मैं भी अब्रॉड में था तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स थे, हाँ, GCC कंट्रीज़ के अंदर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या फिर IT स्टार्टअप्स के हो, बिजनेसमैन हो, वेल सेटल्ड हो अल्हम्दुलिल्लाह अपने लाइफ में, फिर भी जो है हमारे कौम की तरफ जो है उन लोगों ने बैठ के एक सोचा कि हमारी कौम आगे कैसे बढ़ सकती है। 18% हमारी आबादी है, राइट,
फिर भी हमारे अंदर बैकवर्डनेस, पिछड़ापन कहा जाता है हमारे अंदर, इसको कैसे हटाया जाए। तो दो चीज़ें सामने आई, सबसे पहले एजुकेशन और सेकेंड जो है एम्पावरमेंट। और इस सब चीज़ों को अमल में लाने के लिए सोचा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसा हो जाए, राइट। तकरीबन 25 ताल्लुक है हमारे, टोटल 25 ताल्लुक, हम लोग जो है आपके 25 ताल्लुक है अभी, ये 3 डिस्ट्रिक्ट मिलाकर। हर तालुका में जो है व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए, जीसीसी कंट्रीज़ में भी व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए, और हमारे वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्रीज़ में भी जो कौम का फिक्र रखते हैं उनको भी व्हाट्सएप ग्रुप्स में शामिल किए। तकरीबन 8000 से ज़्यादा लोग वेल कनेक्टेड हैं। कहीं पे भी एक प्रॉब्लम होता है सबको इन्फॉर्मेशन मिलती है, और अपने जो जितने रिसोर्स पर्सन है, जितने फ़िक्रमंद साथियाँ हैं, आपके बटकल में भी है, हमारे इलाके में भी है, सब लोग जो बैठ के जो अपना मशवरा डालते हैं उसके अंदर, फिर जो है प्रोजेक्ट्स जो है बनता है उसके अंदर मशवरे के मुताबिक, और फिर जो उसको जो अमल पे लाया जाता है ग्राउंड के ऊपर, हमारे डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। तो बहरहाल मेरा कहने का मकसद ये था कि भाइयों, हमें ये पता है कि 18% हमारी आबादी है। क्या हम अगर अब तालुक ऑफिस चले जाएं, इसका मतलब क्या है, 100 लोगों में 18 लोग हम हैं, 100 लोगों में 18 लोग हम हैं। क्या हमारे हॉस्पिटल्स में 100 लोगों के डॉक्टर्स के अंदर क्या 18 लोग हम पाए जाएंगे? क्या हमारे कोर्ट्स के अंदर 100 लॉयर्स के अंदर 18 लोग हम हैं? क्या हमारे तहसीलदार ऑफिस में हो या फिर डीसी ऑफिस में हो कि 100 लोगों की आबादी में क्या हमारे 18 ऑफिसर्स हैं उसके अंदर? नहीं है। बताने वाले बताते हैं, और जो है हमारे वीडियोस आते हैं व्हाट्सएप में, मुसलमान नहीं गैरों के लोग व्हाट्सएप वीडियोस बनाते हैं कि आईएएस में और आईपीएस में जो हमारी आबादी है लेस देन 1% और 2% आबादी है। तो जो फिक्र करने वालों ने जब फिक्र किया तो अल्लाह ताला ने उनके जहन में जो है बात डाली कि एजुकेशन टू एम्पावरमेंट जो कन्वर्जन रेट है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है। तो इसके लिए जो है 2-3-4 हाई लेवल के हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट किए। सबसे पहले शाहबदरी साहब ने जैसे बताया गवर्नमेंट जॉब अवेयरनेस और ट्रेनिंग, और सेकंड प्राइवेट जॉब्स अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग, और थर्ड एजुकेशन के ऊपर, और चौथा जो है गवर्नमेंट में जिनसे मिलने वाली जितने भी फैसिलिटीज़ हो, हेल्थ सेक्टर में हो या फिर जो भी स्कीम्स हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, चाहे वो आपके लेबर कार्ड हो या फिर ई श्रम कार्ड्स हो, जितने भी स्कीम्स आएंगे वो हम लोग गवर्नमेंट से कैसे लेने वाले बने, इसको जो है मस्जिद लेवल में जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट किए। तफसीर से बात इंशाल्लाह नमाज के बाद होगी, क्योंकि वक्त की कमी है। मैं यहाँ से रुखसत होता हूँ, इंशाल्लाह नमाज के बाद आप तमाम को देखने की इंशाल्लाह मैं जो उम्मीद रखता हूँ। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया जनाब। माइक थोड़ा सा यहाँ पर ठीक नहीं चल रहा है मेरे ख्याल में, खैर, लेकिन ये जो काम हो रहा है मैं समझता हूँ कि मैंगलोर डिस्ट्रिक्ट के चंद लोगों ने, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बिजनेसमैन और कौम की का दर्द व फिक्र रखने वालों ने इस काम को उठाया था, इसका बेड़ा उठाया था। फिर इस आहिस्ता आहिस्ता उडुपी डिस्ट्रिक्ट में चला गया, और मैंगलोर से शुरू होने वाला एक काम उडुपी डिस्ट्रिक्ट में आकर मुनज़्ज़म हो गया। फिर इनकी नज़र इंतखाब कारवार डिस्ट्रिक्ट पर पड़ी, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी 3 डिस्ट्रिक्ट को मिला करके इस अहम काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसमें जैसा कि ये गवर्नमेंट सर्विसेज में हमारे नौजवानों को काम देने की कोशिशें भी हो रही है। मैं इस वक्त हमारे जनाब मौलाना मोहम्मद इलियास जागटी नदवी साहब से गुजारिश करूंगा, क्योंकि वो भी इसी फील्ड के शहसवार हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के समाजी कामों में भी वो दिलचस्पी लेते हैं, और इस वक्त इस ताल्लुक़ से मौलाना अपने मुख्तसरन तासुरात का आपके सामने इज़हार करेंगे। मौलाना इलियास जागटी नदवी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। हिंदुस्तानी मुसलमान इस वक्त उनका बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अपने ताल्लुक़ से उनको गलतफहमियाँ हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी की जाती है, की जा रही है जहाँ भी जा रही है। लेकिन आज भी हिंदुस्तान के हालात ऐसे हैं कि अगर हमारे अंदर एबिलिटी है, सलाहियत है, तो दुनिया भर के लोग हमारे ख़िलाफ़ मनसूबा बनाएं, साजिश कराएं, लेकिन हमारी सलाहियतें हमें वहाँ तक पहुँचा के रख देती हैं। जो काम हमें करने हैं हम लोग वो नहीं करते। जोश जज्बे के साथ हम लोग मुख्तसर मुद्दती प्रोग्राम के अंदर ऐसे मुनहमिक हो जाते हैं कि सामने वाला दुश्मन हमारी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाकर हमारे सिलसिले में एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम बनाता है, और वो यही सोचता है कि मुझे इसका रिज़ल्ट आज नहीं चाहिए, चाहे 10 साल के बाद मिले, लेकिन स्ट्रांग और इस्टेब्लिश मुझे क्या रिज़ल्ट मिले। उसके मुकाबले में हम लोग दरख्त बोने के फ़ौरन बाद फल चाहते थे, और आज की नस्ल तो ऐसी है दरख्त बोने से पहले ही फल चाह रही है। अगर हमने थोड़ी सी, अगर आज भी
समझदारी से काम लिया। हमारे एक दोस्त हैं, मैं अभी बात लंबी नहीं करता, आईजीपी थे कर्नाटक में, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यू निसार साहब। मैं भी एक हफ्ते पहले लखनऊ में था, वो इलाहाबाद में थे अपनी पूरी टीम के साथ। उन्होंने एक मिशन बनाया है जैसे आप लोगों ने बनाया है, और आपने जो मिशन बनाया है मैं समझता हूं कि अगर हमारे लोग सिविल सर्विस के जरिए गवर्नमेंट जॉब के अंदर, प्राइवेट कंपनियों के अंदर अगर 10 से 15% भी पहुंच जाएंगे ना, हमारी शिकायतों का 1/3 हिस्सा हल हो जाएगा। हमें सोचना चाहिए हमारे प्रॉब्लम क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, फिर आगे सजेशन क्या है। न हम अपनी कमजोरियों को देखते हैं, न अपनी वीकनेस को देखते हैं, न उसको एनालाइज करते हैं, न उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, न आगे के लिए हम लोग सजेशन सोचते हैं। बस उन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तान में इस इलेक्शन से पहले अगर 50% लोगों के नाम वोटर लिस्ट में आ जाएं और ये 50% लोग भी अगर वोटिंग में पहुंच जाएं, तो मैं समझता हूं उन्होंने कहा कि 2/3 हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। देखने के लिए छोटी सी बात है। तो मैं मुबारकबाद देता हूं हमारे इनायतुल्लाह साहब को। बहुत सारे इदारे हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन खास इस मकसद के तहत इस इदारे का जो मकसद वजूद में आया है, जैसे मौलाना ज़मीर साहब ने बताया, हमारे साथियों ने बताया, इसका एक ही निशाना है कि हम शिकायतें न करें। हमसे जो हो सकता है ताल्लुका लेवल पर, शहर के लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर। इन्होंने बताया कि 1 साल काम नहीं हुआ, 5 पुलिस वाले आ गए। आप कहेंगे 5 ही पुलिस है? न आने के मुकाबले में 5 पुलिस वाले मैं समझता हूं एक बहुत बड़ी कामयाबी का एक बहुत बड़ा जीना है। एक डिस्ट्रिक्ट में एक साल में हमारे पुलिस के अंदर 5 आदमी आ जाएंगे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में 5 आदमी आ जाएंगे, सिविल सर्विस में 1-2 आदमी आ जाएंगे। आप सोचिए 20 साल के बाद क्या होगा। हमारा दुश्मन 100 साल की ब्लाद का प्लान सोचता है, हम 100 साल से पहले के सोचते हैं। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूं, आज वक्त नहीं है। या जो लोग आए हैं, जैसे उन्होंने बताया कि अगर हम मस्जिद को मरकज बनाकर यहां से तहरीक चलेगी, 1000 इदारों से तहरीक चले, लेकिन हमारे यहाँ जो असर मस्जिदों का है और मस्जिद से जुड़े लोगों का है वो किसी का नहीं है। इसको हमारी हुकूमत भी तस्लीम करती है। भटकल में तो इसका सबसे ज्यादा असर है। हमारे तंजीम के लोग हमेशा ताउन लेते हैं, वास्ता बनाते हैं मस्जिदों को। तो इस काम के लिए भी मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि मस्जिद से मुताल्लिक लोगों को और मस्जिद को उसके खिलाफ हम काम करेंगे। अवेयरनेस आएगा, आज नहीं तो 2 साल के बाद आएगा, 10 साल के बाद आएगा, लेकिन जो आएगा इतना स्ट्रांग आएगा, इनके मंसूबे बनते रह जाएंगे और मुंह तकते रह जाएंगे। इस काम को मामूली न समझिए, बहुत बड़ा काम है। एक मैं इनसे गुजारिश करूंगा इस इदारे के तहत और दूसरे काम अपने जिम्मे न ले। आप सामने ज्यादा मकसद हो जाएगा, काम आपका जो है बिखर जाएगा और असल निशाना आपका छूट जाएगा। आप कम से कम 1 साल तक, 2 साल तक इसी पर टारगेट बना के रहिए और एक टारगेट बना के चलिए। कम से कम हमें 20-25 हर ताल्लुके से एक डिपार्टमेंट में लोगों को 20-25 लोगों को शामिल करना है। आपको 200 लोगों पर मेहनत करनी पड़ेगी। 200 लोगों को लाने के लिए 2000 लोगों के पास जाना पड़ेगा, तब जाके आपको 20 आदमी और 10 आदमी मिलेंगे। और ये 10 आदमी भी समझदार आदमी के नजदीक में समझदार 100% कामयाबी होगी। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये तहरीक हमारी डिस्ट्रिक्ट से चली है, ये पूरे मुल्क में चलेगी और 5-10 साल के साथ इंशाअल्लाह आप देखेंगे वो इनकलाब आएगा कि हमें शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। मैं फिर एक बार मुबारकबाद देते हुए इन्होंने जो मुझे मौका दिया इस पर शुक्रिया अदा करता हूँ और नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ और सबसे गुजारिश करता हूँ इस बड़े काम में मसलक से हटकर, अपनी सियासत से हटकर, अपनी ज़ात से हटकर इंशाअल्लाह इनका ताउन करेंगे। ये ताउन इनका ताउन नहीं होगा, मिल्लत का ताउन होगा, कौम का ताउन होगा, दीन का, इस्लाम का ताउन होगा। बस इसी बात पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया मौलाना इलियास साहब जागटी नदवी। मौलाना ने बहुत अहम नुकात की तरफ तवज्जो दिलाई है, बहुत ही बेहतरीन बात कही कि काम को मुख्तसर करके उसको बेहतरीन अंदाज से आगे बढ़ाया जाए। मैं इस वक्त हमारी शहर के 100 साल कदीम इदारे मजलिस इस्लाह व तंजीम के नहायत फ़ाल और मुतहर्रिक जनरल सेक्रेटरी जनाब अब्दुल-रकीब एम.जे. नदवी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो मुख्तसरन अपने तासुरात पेश करें। इंशाअल्लाह इसके बाद अज़ान का वक्फ़ा होगा और यहाँ पर हमारे करीब मस्जिद है, मस्जिद शाफ़ी भी है और यहाँ पर भी इंतज़ाम किया गया है। नमाज के फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह जलसा फिर शुरू होगा। मौलाना अब्दुल-रकीब नदवी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहरहाल अज़ान का भी वक्त हो रहा है और डाइस पे तशरीफ़ फरमा हमारे मौजूद मेहमान। अज़ान के लिए कुछ 4 मिनट बाकी हैं। बहरहाल ये बहुत ही एक अच्छा इक़दाम है, बहुत ही काबिल
27 हैं, काबिल मुबारकबाद हैं हमारे नम्मा नाडा वक्कोटा के ज़िम्मेदार। वाकई ये इस वक्त मिल्लत की एक बहुत ही अहम ज़रूरत है। गरचे मुख्तलिफ़ तंजीमों की तरफ से, मुख्तलिफ़ इदारों की तरफ से, मुख्तलिफ़ जमातों की तरफ से इस सिलसिले में काम हो रहा है। मजलिस इस्लाह तंजीम की एक 100 साला तारीख़ है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने दस्तूर में मजलिस इस्लाह तंजीम के दस्तूर में भी मजलिस मुशावरत के नाम से हमारी दफ़ात है और हमने उसमें एसोसिएट मेंबर की हैसियत से हमारे अरकान इंतज़ामिया को हम लोग शूरा से चुनते हैं और इस तरह के जो माशी जो सियासी जो हमारे जो मसाइल हैं, चाहे इलेक्शन का मौका हो, मसाजिद के ज़िम्मेदारों को बुला करके उनसे मशवरे के बाद लाअमल तैयार किया जाता है। बहरहाल ये बहुत ही इस वक्त के जो हालात हैं, जैसे एक बात एजुकेशन और एम्पावरमेंट, ये इस वक्त की बहुत अहम तरीन ज़रूरत है हमारे बहसत मिल्लत हम मुसलमानों के लिए। इस वक्त की जो हुकूमत है बरसर इक़्तिदार 1947 के बाद से आज तक मैं बाकायदा बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारी के साथ और दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि इससे निकम्मी और बुरी सरकार कभी नहीं आई हिंदुस्तान की तारीख में। आज 75 साल हो गए। इससे कि हुकूमत नहीं चाहती है कि मुसलमान, हिंदुस्तान का जो मुसलमान, उसको उसके जो बुनियादी हुकूक हैं उसको उसके बुनियादी हुकूक मिले और जो खास करके जो माइनॉरिटीज़ के लिए जो स्कीमें बनती हैं, जो उनके लिए जो रियायतें दी जाती हैं, चाहे प्री मैट्रिक हो, पोस्ट मैट्रिक हो, आपके लिए अगर तालीम के लिए बहुत सी स्कीमें हैं, बहुत सी स्कॉलरशिप्स हैं, लेकिन वो चीज़ हमारे सामने नहीं है। हमारे लोगों को गाइड करने वाला नहीं है। वो चाहते हैं कि हमारी स्कीमें हम तक न पहुंचे, हमारे लोग माइनॉरिटीज उससे फ़ायदा न उठाएं, बल्कि हक हमारा होता है, वो हक हमारा होता है लेकिन दूसरे खा जाते हैं। ये इस वक्त की जो हालात हैं हिंदुस्तान के, हम चाहते हैं आपको कोई नहीं, या बहुत ही मजलिस इस्लाह तंजीम की तरफ से अब हमें इंशाअल्लाह दिसंबर 23 को पूरे ताल्लुका की भटकल की तमाम ताल्लुका की मसाजिद के ज़िम्मेदारों को हमने बुलाया है और हमने ये एक वर्कशॉप इस सिलसिले में हमने मुनाकिद किया है, जिसमें हमने यानी मसला ये हमारा उसमें जो है मकसद ये है कि हमारे मुसलमानों को जो है सियासी तौर पर, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और फाइनेंशियली, इक़्तिसादी, माशी और सियासी तौर पर हम उनको अपलिफ्ट कैसे करें, ये इस वक्त की बहुत ही अहम तरीन ज़रूरत है। और इस्लाम इस वक्त के जो हालात हिंदुस्तान के हमारे सामने हैं, इस वक्त हमारी जिम्मेदारी दोहरी है। हमें अपने ज़िम्मेदारों का जिम्मेदारी का एहसास करते हुए हमें आगे बढ़ना है। अल्लाह ने हमें जो भी सलाहियतें दी हैं, अल्लाह ने हर इंसान को मुख्तलिफ तरह की सलाहियतें दी हैं, तो अपने सलाहियतें जो अल्लाह ने हमें जो सलाहियतें हैं, उन सलाहियतों को हम मिल्लत के लिए, मिल्लत के अपलिफ्टमेंट के लिए, कि मिल्लत को हम लोग कैसे उठाएं, इस दलदल से कैसे निकालें, उसके लिए थोड़ी सी कुर्बानी की ज़रूरत है। हमें इंशाअल्लाह हमेशा हिंदुस्तान का जो इस वक्त हिंदुस्तान का जो आईन है, हिंदुस्तान का जो दस्तूर है, हिंदुस्तान का जो सेकुलरिज्म है, जो गंगा जमनी तहजीब जो हिंदुस्तान की है और जो हिंदुस्तान की जिसके अंदर वही खूबसूरत हिंदुस्तान इसलिए कहा जाता है, इसलिए कि ये गोया के फूलों का मुख्तलिफ रंग बिरंगे फूलों का एक गुलदस्ता है और हमें इस्लाम, हमारे परवादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तालीम देते हैं मानवता और इंसानियत की। अब इंसानियत दम तोड़ चुकी है, हिंदुस्तान में इंसानियत दम तोड़ रही है। मैं आपसे कहता हूं इसलिए कि जब किसी इंसान की मुसीबत दूसरे इंसानियों के लिए अगर तमाशा बन जाती है, तो याद रखिए कि इंसानियत दम तोड़ देती है और हिंदुस्तान में इंसानियत दम तोड़ रही है और हमें इससे इंसानियत को जगाना है, मानवता और इंसानियत के लिए, न्याय के लिए, इंसाफ के लिए और अपने जो है अपने हुकूक की बहाली के लिए हमें खड़े होना है, हमें आगे बढ़ना है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, क्योंकि हमारे मकासद ये है इंशाअल्लाह, और हमारा कुरान का उसूल भी ये है, इस्लाम का दस्तूर भी ये है कि अच्छे तावनु अलल बिर्रि व तक़वा, के ताउन और अच्छे कामों में हमें एक दूसरे से हमें ताउन लेना है, अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ, कोऑपरेशन के साथ, अच्छे तालमेल के साथ और आपस में मिल करके हमें मुत्तहिद होकर के बहुत बड़ा काम है। मिल्लत के मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करके उनकी सलाहियतों को मिल्लत के फायदे के लिए उनको इस्तेमाल में लाना, यह बहुत बड़ा काम है। देखिए, अगर ये हमारी इत्तेहाद ये ऐसी तलवार है, अगर इस इत्तेहाद की ताकत को हमको आगे बढ़ेंगे तो याद रखिए दहाई से फिर सैकड़ों से हज़ार और हज़ारों से हमें लाखों में हो जाएंगे
और वो चाहते हैं और उनकी ये कोशिश है कि हमें उनको जो हम लोगों के अंदर जो है इंतशार पैदा करें, हम लोगों के अंदर तफरीक पैदा करें, हम लोगों को बांटे। तो इंशाअल्लाह मैं आपको इसके वक्त भी हो रहा है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह मजलिस इस दावत तंजीम की तरफ से जो यहाँ का सियासी और समाजी मरकजी इदारा इंशाअल्लाह इस सिलसिले में हमारा हर तरह से आपको ताउन होगा इंशाअल्लाह। मिल करके इंशाअल्लाह हम एक मुट्ठी बन करके ये ताकत बन करके इंशाअल्लाह हमारे माशरे की, हमारे मिल्लत की सलाह और फलाह के लिए हम जो कर सकते हैं इंशाअल्लाह करेंगे। अल्लाह ताला बस अगर इखलास की बस ज़रूरत इस बात की है कि हमारे अंदर ये कि अल्लाह के पास जवाबदेही का एहसास हो, इखलास हो, खुलूस हो, लिल्लाहियत हो और जो काम करे वो अल्लाह की रजा के लिए करे तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमारी मुक़द्दर और मुक़द्दर है इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಈ ನಮ್ಮ ನಾಡ ಒಕ್ಕೂಟ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಂಘಟನೆಗಳಿವೆ, ನಮ್ಮ ನಾಡ ಒಕ್ಕೂಟ ಯಾಕೆ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ನಾಡ ಒಕ್ಕೂಟ ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಕೇವಲ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮವರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರರು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನನ್ನು ಸಹ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶ. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಾಡ ಒಕ್ಕೂಟ ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ತದನಂತರ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 7 ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ನಡೆದರೆ ನಮ್ಮ ನಾಡ ಒಕ್ಕೂಟ, ಅದು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. ಅದನಂತರ ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ, ಮಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸದಸ್ಯರು ಹೇಗೆ ಕಮಿಟಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಮಾನ್ನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಜರ್ಮನಿನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ನಮ್ಮ ನಾಡ ಒಕ್ಕೂಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರು ಅನ್ನೋರು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ, ನಮಗೆ ಅದರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಮಾಹಿತಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿದೆ ಹೊರತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನು ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ ನಂತರ ಈಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇದು ಆ್ಯಡ್ ಬರ್ತದೆ, ಇಂಥ ಉದ್ಯೋಗ ಇದೆ, ರೈಲ್ವೆನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಇದೆ, PSIಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಇದೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಇದೆ, ಅಥವಾ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ASP, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಅದು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ. ನಾವು ನಾಳೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, ಆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕಂದೇಳಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸುಮಾರು 7 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅವರು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಜಾಬ್ ಬೇಕೋ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಜಾಬನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ. ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ, ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಪ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಸಿನ ಕೊರತೆಗಳು ಇರ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಯಾರು ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕರೆತಂದು ಅವರಿಗೆ ಫೈನಾನ್ಸಿನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಆಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ನಾಡ ಒಕ್ಕೂಟ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು.
ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವರ ಹೆಸರು ಸರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ವರ್ಷ ಸರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತುಂಬ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ 4 ಹೆಸರಿದೆ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 15 ತಿಂಗಳು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದೆ ಅಂದೇಳಿ ನಮ್ಮ ನಾಡ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕಮಿಟಿಯವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಟಿ ಸಿ ಒಮ್ಮೆ ಕಳೆದು ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ, ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಮತ್ತು ಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಅಂದೇಳಿ ಅವರಿಗೊಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಟಿ ಸಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಅದು ಕಳೆದು ಹೋದರೆ ಮತ್ತು ನಾವು FIR ಮಾಡಿ ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಿಂದ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ತಗೋಗಿ ಮತ್ತು ಪುನಃ ಟಿ ಸಿ ಪಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ. ಇಂಥ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸಿ, ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸಿ ಅವರು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. 3 ಲಕ್ಷ 4 ಲಕ್ಷ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ನಾವು ತುಂಬಿಸಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೇವೆ. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಪ್ರತಿ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಯಾಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 8 ರಿಂದ 10 ಜನರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಆಗಿದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುವಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ 50,000 ಇರ್ಬೋದು, 1 ಲಕ್ಷ ಇರ್ಬೋದು, 2 ಲಕ್ಷ ಇರ್ಬೋದು, 4 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಬಿಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ನಾಡ ಒಕ್ಕೂಟ ಹೆಬ್ರಿ ಘಟಕದವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ತೋರಿಸಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸ ಕೇವಲ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಒಂದು 20-30 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲಸ ಚಿಕ್ಕದು, ಆದರೆ ಪ್ರಯೋಜನ 3-4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಬರ್ತಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಸೀದಿಗೆ ಒಂದು ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ನನ್ನ ಮನೆಯವರು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಸಹೋದರ, ನನ್ನ ತಂದೆ, ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಇವರು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ನಾಳೆ ಅವರು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಹಣ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅಂದೇಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹತ್ರ ಲೆಟರ್ ತಗೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ನಮಾಜ್ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಒಂದು ಕೇಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ರೀತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಖಾಲಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಕೆಲಸಗಳಿವೆ. ನಾವು ವಿದೇಶಿ ಮಾತಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ವಿದೇಶಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅಂದೇಳಿ, ಅದು ವಿದೇಶಿಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಕುಂದಾಪುರ, ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿನವರೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಬನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿದೇಶದವರು, ನಮ್ಮ ನಾಡ ಒಕ್ಕೂಟ ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿದೆ. ಅವರು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಿಂದ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆವಾಗ ನೋಡಿದವರು ಒಮ್ಮೆ ನನಗೆ ಈ ಜಾಬ್, ನನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜಾಬ್ ಅಂದೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಜಾಬ್ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನೀವು ಹಣ ದೋಚುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಣ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಖರ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಅವ್ರು ಇದ್ದದನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ನಾಡ ಒಕ್ಕೂಟ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಹ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವೀಗ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಇರಾದೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲೀಂ ಭಾಯ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹುಸೇನ್ ಭಾಯ್ ಅವರು ಸಹ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಂದೇಳಿ. ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಒಂದು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, 3 ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳು ನಮ್ಮ ನಾಡ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಡ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ ನಾವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ 10-15 ಜನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ ಆ ನಂತರ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇನಾಯತುಲ್ಲಾ ಶಾಬಂದ್ರಿ ಅವರು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾರವಾರ ಇರ್ಬೋದು, ದಾಂಡೇಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು 11 ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಅವರೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಒಂದು ಕಮಿಟಿಯ ರಚನೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಲ್ಲೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಒಂದೊಂದು ಹಾಲಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾನಾದರೂ ಈ ಕೆಲಸ ನನಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದು ಬೇರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು.
ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅವರೇ ಬ್ಯಾನರ್ ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು, ಸ್ಟೇಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಊಟವನ್ನು ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಕಿಸೆಯಿಂದ ಹಾಕಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಲಿಲ್ಲ. ಶಾಬಾಂದ್ರಿ ಅವರ ಒಂದೇ ಮಾತಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು, ನಾವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಊಟ ಹಣ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಬೇಡ ಇದು ನಾವು ಏನಾದರೂ ಹಣ ಇದು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಶಾಬಾಂದ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಮಾತು. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಅವರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಂಥ ಅಭಿಮಾನ ನಾನು ಯಾರಲ್ಲೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಮಿಟಿ ಸಹ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ರೀತಿ ಚಂದರಿಂದ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಬಾಂದ್ರಿ ಅವರ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್, ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, SLC ಆದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, PUC ಆದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಗ್ರಿ ಆದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಇವೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ನಾವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಕೇವಲ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ನಾವು ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದರೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ. ಡ್ರಗ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಎಷ್ಟೋ ಈಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಎಷ್ಟೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹೊರಹಾಕಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಜನ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಸಂಘಟನೆ ಮುಖ್ಯ. ನಾವು ಜನ ಮಸ್ತದ ಆರಿಸಿ ತುಂಬ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಲಾಭ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು 4 ದಿನಗಳಿಂದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಮೀರ್ ಮೌಲಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಸಮೀರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಭಾಯ್ ಅವರು ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು 4 ದಿನ ಅವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಂದು ಗಮ್ಮತ್ತಾಗಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಬ್ಯಾನರ್ ತಂದು ಅವರು ಕಟ್ಟಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಏನಾದರೂ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಅದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಂಘಟನೆ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಜನ, ನಾನು ಬ್ಯಾನರ್ ಕಟ್ಟುವುದು ಅಂದೇಳಿ ಆ ಮನಸ್ಸು ಒಳಗಿದ್ದರೆ ನಮಗೇನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಭಾಯ್ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವರು ಸಹೋದರರು ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಹಮೂದ್ ಭಾಯ್ ಅವರು ಸಹ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. പക്ഷേ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮರೆಯಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇವರು ಸಹ ಒಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ತುಂಬ ದೂರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಹೋದರರು ಭಟ್ಕಳದಿಂದ ಹೊನ್ನಾವರ ಕುಮಟದವರೆಗೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತುಂಬ ಜನರ ಹೆಸರು ಸಹ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಹಕಾರ ತುಂಬ ಜನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಭಾಷಾಬಾಯಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಅವರು ಸಹ 4 ದಿನ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರೀತಿ ಅದು ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಘಟನೆ ತುಂಬ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮುಸ್ತಾಕ್ ಭಾಯ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಿಟಿಯ ಟ್ರೆಸರರ್ ಹಮೀದ್ ಭಾಯ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಾಕಿರ್ ಅವಂಜರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬೈಂದೂರು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಮಿ ಅವರು, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇರಲಿ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರೊಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂಥವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹುಸೇನ್ ಭಾಯ್ ಅವರು ಅರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದವರು, ಅವರು ಸಹ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಾರವಾರ ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ, ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. अस्सलाम वालेकुम. हेलो, शुक्रिया हुसैन आइकाड़ी साहब. और हमारे 2-3 साथी हैं, इंशाल्लाह वो बात करेंगे. फिर हम एक कमेटी तो अभी नहीं करते, हम लोग आपस में मशवरा किए कि इतने सारे मजमा भी आधा चला गया. हमको मालूम था ये सब हम लोग देखते आ रहे हैं. अभी आधा आदमी आधा चला गया. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. अच्छा खुशी हुई
कि हमारे जनरल सेक्रेटरी तंजीम के नमाज के अजान से पहले उनकी बात हुई, इल्जाम होना की बात हुई, बहुत हमको खुशी हुई क्योंकि इम्पोर्टेंट हमारे गांव के मस्जिद से इस्लाह तंजीम के जनरल सेक्रेटरी और बहुत इम्पोर्टेंट, और वो डीसी आए। डीसी आने से हमारे तंजीम के तकरीबन 10 मेंबर वहाँ पे चले गए। अभी IB में उनकी मीटिंग है, मेरे को भी जाना था, मैं ये प्रोग्राम छोड़ के नहीं जा सकता हूँ, वो लोग गए। अभी हमारे आतिकुर सामान 2 बात करेंगे, फिर हमारे समीर मोमिन साहब हैं, वो भी अपने ख्याल का इजहार करें। आप में से कोई भी आदमी बात कर सकते हैं, इसमें कुछ झिझक नहीं है, आप आराम से बात करिए। इंशाल्लाह फिर हमारे समी भाई और उनका असल भाषण बाकी है, ये लोग आपको समझाएंगे ये चीज़ क्या है, अभी भी थोड़े लोगों को मालूम नहीं हुई है। बहरहाल में आतिकुर रहमान उन्हें भी जा रहे हैं। इस वक्त नम्मा नाडा उकुटा की तरफ से जो कदम उठाया गया है वो यकीनन काबिल तहसीन लायक तारीफ़ है। इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि आइंदा दिनों में इसके जो भी ज़िम्मेदार हैं उनको बहुत ही पजीराई हासिल होगी और वाहवाही हासिल होगी, और इंशाअल्लाह इन खिदमात के बदले में आपको अल्लाह ताला जज़ाए खैर भी देगा और लोगों में भी आपकी इस यूनियन को मकबूलियत हासिल होगी इंशाअल्लाह, हम उम्मीद करते हैं। मैं सुनते आ रहा था हमारे बचपन से, हमारे कायद कौम जनाब मरहूम बदुल हसन साहब मौल्लिम, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, वो हमेशा कहते रहते थे कि हमारी मुस्लिम कम्युनिटी से कोई IAS ऑफिसर बने, IPS बने, IFS बने। लेकिन ये इस सिलसिले में उनका एक ख्वाब भी था, और उसके बाद में हमारी भटकल मुस्लिम खलीज कौंसिल ने भी इसके लिए परसुएट किया हमारे नौजवानों को, फिर मजलिस इस्लाह व तंजीम की तरफ से भी कोशिशें हुई, लेकिन अभी तक प्रैक्टिकल तौर पर ऐसा कोई ऑफिसर IAS, IPS, IFS या दूसरे अहदों के लिए इन अहम अहदों के लिए कोई अफसर हमारे सामने नहीं आया। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह अभी आइंदा दिनों में इस यूनियन की कोशिशों से इंशाअल्लाह न सिर्फ हमारे इस इलाके में बल्कि हमारी पूरी रियासत में इंशाअल्लाह एक बड़ी तादाद में इस तरह के ऑफिसर्स हमारे हुकूमती सतह पर वहाँ पर इंशाअल्लाह भर्ती होंगे और वो भरपूर अंदाज में मुसलमानों की नुमाइंदगी करेंगे और कौम के लिए इसको फ़ायदा होगा। यहाँ पर तो बहुत कम लोगों को हम देख रहे हैं, लेकिन आइंदा दिनों में इंशाअल्लाह ये आवाज़ बहुत दूर तक चलेगी। मैंगलोर से उठने वाली और उडुपी से इस आवाज़ को जिस तरह से मुनज़्ज़म किया गया, फिर कारवार डिस्ट्रिक्ट में ये आवाज़ पहुँची, ये यहाँ से लेकर के पूरी रियासत नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान की सतह पर ये आवाज़ इंशाअल्लाह ज़रूर पहुँचेंगी। वो दिन बहुत दूर नहीं है हमारे सामने। तो किसी शायर ने कहा था कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेकर चलो, और यही आज़म को लेकर उठे हैं हमारे इस नम्मा नाडा उकुटा के ज़िम्मेदार। मैं फिर एक मरतबा उनको अपनी तरफ से और तमाम सामाइन की तरफ से, पूरे भटकल की तरफ से और इनायतुल्लाह शाहबंदरी की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और चूँकि इनायतुल्लाह शाहबंदरी का इंतखाब इन्होंने 100% 100% बहुत ही सही किया है, क्योंकि इनायतुल्लाह शाहबंदरी जो जिस तरह से हमारे इस भटकल ही नहीं बल्कि हमारे इस पूरे इलाके में कोस्टल बेल्ट में जिस तरह से सियासी और समाजी मैदान में काम कर रहे हैं और जो मकबूलियत उन्हें हासिल हो रही है, मैं समझता हूँ कि हमारे इन गुज़िश्ता कुछ सालों के दरमियान किसी नौजवान को इतनी अहमियत और इतनी मकबूलियत हासिल नहीं हुई। इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि इनायतुल्लाह शाहबंदरी की क़यादत में काफ़िला आगे बढ़ेगा और बहुत हद तक इंशाअल्लाह कामयाबी होगा। मैं इंशाअल्लाह इसके बाद हमारे इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। अभी इनायतुल्लाह शाहबंदरी साहब की इज़्ज़त अफजाई करेंगे हमारे नम्मा नाडा उकुटा की तरफ से। मैं 1 मिनट, उसके बाद में हमारे इस प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे हमारे साथी और हमारे कौम के एक फ़ाल नौजवान प्रोफेसर हमारे मोहम्मद गानिम मोहतशम साहब, जो कि अंजुमन डिग्री कॉलेज के लेक्चरार भी हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस वक्त इनायतुल्लाह शाहबंदरी साहब की इज़्ज़त अफजाई की जा रही है नम्मा नाडा उकुटा की तरफ से। नम्मा नाडा उकुटा के बहुत ही अहम जिम्मेदार यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ही अहम और तारीख़ी दिन है भटकल की तारीख़ का, क्योंकि आगे इंशाअल्लाह इस वक्त जो बुनियाद रखी जा रही है, इस बुनियादों का फल इंशाअल्लाह और इस दरख्त का फल आगे की नस्ल इंशाअल्लाह ज़रूर उठाएगी और कौम के लिए एक मुबारक लम्हा बहुत ही कारामद होगा, बहुत ही बरकत वाला होगा और आइंदा नस्ल के लिए नस्ल भी याद रखेगी इस दिन को और इस लम्हे को, जिस लम्हा इस ग्रीन पैराडाइज के हॉल में इस अहम काम की कड़ी यहाँ पर जोड़ी जा रही है और एक बहुत ही बड़ा काम और एक हमारे कायदीन का पुराना ख्वाब इंशाअल्लाह यहाँ से शर्मिंदा ताबीर होगा और आइंदा दिनों में
एक बहुत बड़ा काम नम्मा नाडा उकुटा की तरफ से न सिर्फ रियासत कर्नाटक में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इंशाल्लाह एक अहम कारनामा इनकी तरफ से अंजाम दिया जाएगा। हम यही उम्मीद करते हैं, इनका हौसला बढ़ाते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब इंशाल्लाह हमारे गानिम साहब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। Thank you so much, Atiq Sahab. I request the guests who have finished felicitating our Inayatullah Shabandari Sahab to take their positions once again on the stage before we can conclude the session. We have a small part left with a few important things to be mentioned once again. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं इसके लायक नहीं था। नम्मा नाडू हमारे सेंट्रल कमेटी ने उन्होंने इस वक्त हमें सलमान किया और शाल पुष्टि भी की। हमें ज़रूरत नहीं थी इसकी, मगर मैंने कहा उनको नहीं, मैं खुद ऑर्गेनाइज़र हूँ और हमें अच्छा भी नहीं लग रहा है। बहरहाल उन्होंने हमें ये सलमान दिया है। बस अल्लाह से दुआ करूँगा मैं, आप लोगों भी हमारे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे हाथ से कुछ खिदमत ले ले, हमारे हाथ से कुछ सेवा ले ले। अल्लाह का हुक्म चाहे तो हमारे हाथ से अल्लाह ताला सेवा ले सकता है। हम अल्लाह के पास मांगते रहना और हमेशा हम मांगते रहते, और अल्लाह ताला भी हमें कुछ मौका भी बहुत देते। कुछ लोग आते हैं हमारे पास कुछ उम्मीदें रख के कुछ काम करने के, स्टेशन का मामला, फॉरेस्ट का मामला, हर कोई मामला हमारे पास आता है, तो हमने उनको मोहब्बत से प्यार से बात करते हैं, उनको समझाते हैं। आज मैं एमएलए का पोजीशन नहीं हूँ, फिर भी मैं एमएलए के लोग के हमारे कौम ने, हमारे तंजीम ने मुझे एमएलए कैंडिडेट बनाया था 2013 में। मैं थोड़े वोट से हार गया था, फिर भी मैं आज भी हार के मैं घर में बैठा नहीं हूँ या घर में सोया नहीं हूँ। बिल्कुल एमएलए की तरह मैं सामने आंखों आंख मिला के डिपार्टमेंट से या हमारे डिपार्टमेंट से बात करता हूँ। कोई डिपार्टमेंट हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, डीसी हो, एसपी हो, कारवार, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डिस्ट्रिक्ट के भी कौन से कुमटा, अंकोला, कारवार, जो भी लोग मुझे बुलाते हैं मैं उनके साथ जाता हूँ और आइंदा मैं काम भी करूँगा। बस अल्लाह से यही जो भी खिदमत करने का मौका मिलता है मुझे, मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग भी इंशाल्लाह खिदमत कीजिए हमारे साथ। यही भी नम्मा नाडू उकुटा खुद खाली खिदमत करने के लिए आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उसको बहुत चॉइस किया, बहुत पसंद किया, और इंशाल्लाह मैं इनको पूरे ज़िले का संगठन बना के दिखाऊंगा इंशाल्लाह। और भटकल का भी संगठन में अभी हम टेम्पररी कन्वीनर और ज्वाइंट कन्वीनर भी डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद पूरे भटकल की एक अच्छी कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी पूरे ज़िले की भी एक कमेटी हो जाएंगी। और ज़िले का हमारा मीटिंग भटकल में या तो सिरसी में या मुनगोड़ में इंशाल्लाह हमारा मीटिंग हो जाएगा, जिसमें उलमाए कराम, बड़े बड़े हजरात हमारे उलमाए कराम आएंगे और बात करें। फिर उसके बाद जिला हमारा एक ऊपरी कारवार जिला, उडुपी जिला, मैंगलोर जिला, ये तीनों का एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा और तीनों का हमारे कोस्टल बेल्ट का एक बड़ा एसोसिएशन बन जाएगा इंशाल्लाह। आप दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमारे लोग, हमारे नम्मा नाडू उकुटा की सेंट्रल कमेटी जो लोग, सदर सलीम भाई दुबई में हैं, बहुत सारे लोग दुबई में हैं, हमको देख रहे हैं, हमको सुन रहे हैं और कौम की दर्द और फिक्र को लेके काम कर रहे हैं। तो उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप डर के हमारे साथ रहो और आप कहाँ पे वहाँ रख के आप फिक्र करते हैं और हम लोग यहाँ पे इंशाल्लाह आपसे भी अल्लाह ताला अच्छा काम ले हुए और हमारे हाथ से भी, हमारे पूरी कमेटी के हाथ से भी अल्लाह ताला हमारे हाथ से काम ले। और फिर मैं और एक बार नम्मा नाडू उकुटा सेंट्रल कमेटी का मैं शुक्रिया अदा करते हुए मेरी बात को मैं ख़त्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। By the NNO Organizing Secretary from Banjul, Mr. Abdul Sami. I request him to please take on the dais and continue your session. Thank you. थैंक यू। मैं आपका सिर्फ 10 मिनट लूँगा। जो उन्वान हमने नमाज से पहले शुरू किया था कि NNO के वर्किंग के बारे में प्रैक्टिकली तौर पर हम लोगों ने क्या क्या कामें, प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया हमारे डिस्ट्रिक्ट में और दक्षिण कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट में, उसके बारे में जो है तफसीर से 10 से 12 मिनट लूँगा आपको। मैं अपने इनवान को आने से पहले जो है इनायतुल्लाह शाबंदरी साहब के बारे में चंद लफ्ज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ कि मैंने जो है हमारी ज़िंदगी में जो है बहुत सारे लीडर्स देखे। एक स्कॉलर्स ने कहा है कि बॉस और लीडर के दरमियान एक फ़र्क होता है। बॉस हमेशा कहता है कि यू डू इट, वेरस लीडर कहता है कि लेट अस डू इट, हम मिल के करेंगे। तो वो जो सिफत है माशाल्लाह हम लोगों ने 4 दिन में इनायतुल्लाह साहब के उस कैरेक्टर में हम लोगों ने पाया। बहुत खुश नसीब है हम तमाम नम्मा नाडू उकुटा के ज़िम्मेदार लोग, जिसे जो है उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट में इनायतुल्लाह शाबंदरी साहब जैसे पर्सनालिटी हम लोगों को मिले। राइट, हमने यह बार बार ये भी देखा है
कि एमएलए कैंडिडेट 2013 में स्टैंड होते, फेल होते हैं, राइट। 2018 में फिर उनको मौका नहीं मिलता, फिर भी जो है 2013 से लेकर टिल डेट अल्हम्दुलिल्लाह जो है सर्विस टू ह्यूमैनिटी, सर्विस टू कम्युनिटी बाकायदा करते आ रहे हैं। तो हम जो है उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। आप तमाम से जो है गुजारिश करता हूँ उनका भरपूर सपोर्ट करें इंशाल्लाह। जो मेरी उन्वान है एम्पावरमेंट के बारे में, एजुकेशन टू एम्पावरमेंट, इसके लिए हम लोगों ने क्या चीज़ें की, तो 5 सब्जेक्ट्स पे हम लोगों ने काम किया। सबसे अव्वल जो है गवर्नमेंट जॉब अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग। हमारे यहाँ पे पाया गया कि लोगों के अंदर इंफॉर्मेशन नहीं है, हमारे स्टूडेंट्स के अंदर, यूथ के अंदर इंफॉर्मेशन नहीं है कि जो है फॉर एग्जांपल विलेज अकाउंटेंट, इसके जॉब के लिए क्या करना है, या फिर आपको सीए बनना है तो क्या करना है, या फिर आपको डॉक्टर बनना है तो कौन से एग्ज़ाम्स के ज़रिए से जाना है। ये हमारे यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं है। ये इसीलिए नहीं है कि हम, उनके माँ बाप जो है डॉक्टर्स नहीं है, उनके माँ बाप जो है लॉयर्स नहीं है, उनके माँ बाप के पास जो इन्फॉर्मेशन नहीं है, राइट। तो इसके वजह से जो है उन बच्चों के अंदर भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। तो हम लोगों ने जब इस चीज़ को पाया, हम लोगों ने मेहनत की इसके ऊपर। हम हर मसाजिद चले गए, उसके बारे में जो ऐलानात किए, तकरीबन 150 से 200 बच्चों को हमने ताल्लुक़ लेवल पे जमा किया। 150 से 200 बच्चे, जो 9th स्टैंडर्ड एंड अपवर्ड्स, 9th 10th 11th 12th और ग्रेजुएशन के बच्चे, उन बच्चों को लाकर जो है हम लोगों ने 4 चीज़ों पे काम की। सबसे पहले जो है मोटिवेशन, क्योंकि हमारे बच्चों में पाया गया है, हमारे घर की बात है, सबकी घर की बात है कि बच्चों के अंदर जो है पैशन नहीं है, कि कुछ बनने का शौक़ नहीं है उनके अंदर। तो वो जज्बे को लाने के लिए हम लोगों ने मोटिवेशन सेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हम लोग बार बार शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चों में डिसिप्लिन नहीं है, राइट। कभी हम लोगों ने किसी स्कूल में भी आप जाएं, वहाँ पे डिसिप्लिन के लिए अलग से सेशन नहीं रहता वहाँ पे, या फिर करियर गाइडेंस के लिए अलग से सेशन नहीं होता। हमारे यहाँ तो नहीं होता, आई डोंट नो अबाउट योर ताल्लुक, बट हमारे यहाँ तो नहीं होता। सिर्फ 9th 10th 11th 12th जो 6 सब्जेक्ट है, बस यही को पढ़ाया जाता है, फिर फारिग हो जाते हैं बच्चे। बच्चों को ये नहीं पता कि किस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना है, कैसे उसको जो है एक नेक्स्ट एक अच्छे ओहदे में पहुंचना है। लॉयर्स हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे बता रहे थे, ऐसे पोस्टों में कैसे जाएं, इसके बारे में उनके अंदर इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हम लोगों ने जैसे एक वर्कशॉप किया था जिसमें मैंने बताया कि सबसे पहले मोटिवेशन, सेकंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसके बारे में जो है प्रोफेशनल ट्रेनर्स को बुलाकर जो है उनके अंदर जो है बच्चों के अंदर उसके इन्फॉर्मेशन दिए। वहाँ पे जब उनका जज्बा लगा कि हाँ मुझे होना है, मुझे लॉयर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, 18% मेरी आबादी है, मैं भी जो है 100 डॉक्टर्स में 18 डॉक्टर्स इंशाल्लाह मैं भी एक बनूंगा। जब इस चीज़ को उनके अंदर लाया गया, बेदारी को लाया गया, उसके बाद में जो है उनको जो है कैसे करना है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसके बारे में तफसीर से बात हुई। और आखिर का जो सेशन है सेम वर्कशॉप के अंदर हम लोगों ने ये बात रखी, गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर आपको जो है कैसे, उसके फ़वाइद क्या है गवर्नमेंट जॉब्स के, कैसे एग्ज़ाम्स को क्रैक किया जाता है, और जो है उसके जो भी एंड टू एंड प्रोसेस है उसके बारे में समझाया गया प्रोफेशनल ट्रेनर्स के ज़रिए से। तब जाकर जो है अल्हम्दुलिल्लाह 150 की मैं जो स्टैट्स बता रहा हूँ ये हमारे यहाँ पे हुआ है। ओके, तो तकरीबन 150 बच्चों में जो है 60 बच्चे सामने आए कि हाँ मुझे जो है गवर्नमेंट की नौकरी पानी है। तो हम लोगों ने बाकायदा, जैसे मौलाना कह रहे थे इससे पहले, कि उनको व्हाट्सएप ग्रुप में रखा गया। अभी भी 6 महीने से चल रहा है। एवरीडे ट्रेनिंग मटेरियल्स मिलता है उनको, जो ट्रेनिंग मटेरियल्स जो है जो रेलवेज़ के एग्ज़ाम्स में, पोस्ट ऑफिस के एग्ज़ाम्स में हो या पुलिस के एग्ज़ाम्स में हो, जिन 15 सेक्टर्स हैं ऑलमोस्ट हमारे गवर्नमेंट के अंदर, हर सेक्टर्स में, इनकम टैक्स हो, PWD हो, हर सेक्टर्स के एग्ज़ाम्स के पैटर्न में उनको एग्ज़ाम दिया जाता है, ट्रेनिंग मटेरियल भी दिया जाता है। और फिर जब नोटिफिकेशन आता है उनको उस व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से, जो हम कहते हैं कि व्हाट्सएप जो है गफलत की चीज़ है, उसको जो है हम लोगों ने टेक्नोलॉजी को जो अल्लाह का दिया हुआ है उसको जो है सही चीज़ के लिए, उसको जो बेनिफिट, हमारी कौम की बेनिफिट के लिए हम लोगों ने इस्तेमाल किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है 2 सेपरेट ग्रुप्स बनाए गए, क्योंकि फितने का मौका ना आए, इसीलिए जो है मर्द बच्चों को सेपरेटली और बच्चियों को जो है अलग से, जिसमें जो है हमारे ट्यूटर बच्चियों के लिए जो है डिस्ट्रिक्ट जज है, उनका नाम है मुमताज़ बेगम, जो रिसेंटली बने। शी इज़ द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जज इन मुस्लिम जज इन द एंटायर कंट्री। तो वो जो है उनका ट्रेनिंग लेते हैं, और फिर जो है मर्द बच्चों के लिए जो है प्रोफेशनल ट्रेनर्स जो क्राइम डिपार्टमेंट में भी है, दीगर प्रोफेशनल्स में ऑलरेडी अंजाम दे रहे हैं, तो उनके ज़रिए से जो है उनको काम लिया जा रहा है। तो ये रहा गवर्नमेंट जॉब्स एंड अवेयरनेस के बारे में और ट्रेनिंग के बारे में। और सेकेंड चीज़ जो मैंने नमाज से पहले बताई थी, प्राइवेट जॉब्स एंड ट्रेनिंग्स। हमें पता है 10% लोग जो है शायद गवर्नमेंट जॉब्स में हो जाते हैं, राइट,
बाकी के भी 90% बच्चे हैं, तो उनसे क्या उनके ऊपर कैसे मेहनत किया जाए। तो उन लोगों के लिए हमने ये किया सबसे पहले कि हमारे जितने भी ममालिक के अंदर हो या दीगर बाहर के ममालिक में हो, जितने भी प्राइवेट जॉब्स के अंदर जो इख्तियार रखते हैं कि जॉब्स दिलाने के लिए और बच्चे को ग्रूम करने के लिए, नरिश करने के लिए, उन लोगों को हम लोगों ने एज ए रिसोर्स पर्सन जो है व्हाट्सएप में ले लिया। तकरीबन 20 लोग हैं, हम लोगों ने फोकस टीम बनाए। आपके इलाके में भी इंशाल्लाह जो है बहुत सारे रिसोर्स पर्सन्स हैं, इनको भी हम लोग जोड़ेंगे, क्योंकि हम पूरा बेल्ट में चाहते हैं कि तकरीबन मिनिमम 100 रिसोर्स पर्सन्स मिले, 100 रिसोर्स पर्सन्स जो कौम के फ़िक्र के लिए, कौम का जो है एक कम्युनिटी को, हमारे बैकवर्ड कम्युनिटी से फॉरवर्ड लाने के लिए जज्बा रखते हैं, उनको डिजिटली प्लेटफॉर्म में व्हाट्सएप के अंदर उनको लेंगे। और इंशाल्लाह जो है हम लोगों ने एक सॉफ्टवेयर भी बनाया, एक वेबसाइट, जो बहुत से बच्चों को नहीं मालूम कि कहाँ पे रेज्यूम्स को फॉरवर्ड करना है, कहाँ पे अपलोड करना है, कैसे जॉब्स को लेना है। तो इसके लिए जो हम लोगों ने नमनाडा वकूटा की तरफ से हमारी IT टीम बैठकर एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है, तो जिसमें जो है इंशाल्लाह जब एक ग्रुप बनेगा, व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, आपको भी एक लिंक दिया जाएगा, जिसमें से जो है बच्चे अपने रेज्यूम्स को अपलोड कर सकते हैं। हमें ये यहाँ तक देखने को मिला कि बच्चों को जो है अपना रेज्यूम क्रिएट करना नहीं आता। यहाँ तक हमारी प्रॉब्लम्स है। सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, खेड़ों की बात कर रहा हूँ। सबके तरफ जो है हमारी एक जिम्मेदारी बनती है। तो इसके लिए जो है हम लोगों ने उनका रिज्यूम्स लिए, फिर उसके बाद हमारी फोकस टीम जो है 1-to-1 वर्चुअली, हालांकि वो अब्रॉड में है, अपना प्रोफेशन में है, फिर भी जो है सैटरडे संडे अपना जो है खिदमत के लिए देने के लिए जो है इन बच्चों से रब्ता करते हैं। जूम मीटिंग के ज़रिए से, वेबएक्स कॉल के ज़रिए से जो है इन बच्चों से रब्ता कर इनके एस्पिरेशन सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हुए, इनकी जो खामियां हैं उसके लिए जो है ट्रेनिंग, बाकायदा बहुत सारे ऑनलाइन ऐसे ट्रेनिंग से फ्री ट्रेनिंग्स मिलते हैं, जिसमें जो है एक बच्चा जो है इंजीनियरिंग जब कंप्लीट करता है कंप्यूटर साइंस के अंदर, बहुत सारे बच्चे हमें मिले जिसको जो है प्रॉपरली जॉब नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसके अंदर जो है सिर्फ वो कॉलेज में सीखा हुआ ही इन्फॉर्मेशन है। लेकिन आज के डेट में टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, बिग डेटा हो, इसके बारे में फ्री ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं IT के बैकग्राउंड को बिलोंग करता हूँ, ऐसे सिमिलर बैकग्राउंड के, सिमिलर वॉक ऑफ लाइफ के डिफरेंट लोग हैं हमारे अंदर। तो इस तरह से जो उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, गाइड किया जाता है, जब तक वो अपने करियर में सेट ना हो। तो एक तरतीब बनाई गई हमारे यहाँ। तो इंशाल्लाह उसी तरह पे इंशाल्लाह जो है इस कारवार डिस्ट्रिक्ट में भी जब हम लोग ने इनायतुल्लाह शाहबंदरी साहब को बुलाया था हमारे प्रोग्राम के अंदर, जब हमारी कारगुजारी सुनाई गई थी, तो इन्होंने जो आगे बढ़कर कहा कि ये चीज़ जो है, एक सर्विस जो है हमारे कारवार में भी होनी चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे हैं आज। और प्राइवेट जॉब्स के अंदर पाया जाए एक सेक्ट बच्चा, एक तबका ऐसा है हमारे बच्चों का जो 10th स्टैंडर्ड कर जो है डिसकंटिन्यू कर देते हैं। ऐसे भी बच्चे हैं हमारे अंदर, राइट। तो उनका क्या होता है, उनको हमने जब जायज़ा लिया कि क्या कर रहे हैं बच्चे, किसी गराज में छोटे काम कर रहे हैं, हाँ, किसी शॉप्स में या कैंप्स में जो छोटे पैमाने पे होते हैं गांव के अंदर ही, वहीं पे काम कर रहे हैं और जो गुजारा चल रहा है उनका 8,000 10,000 जो भी हो रहा है, राइट। तो इन लोगों के लिए हमने क्या किया, पहले उनसे कंसल्ट किया कि वो क्या चाहते हैं। तो हमें पता चला ऐसे बच्चे हैं जो सलाहियत के, टेक्निकल लेवल के बच्चे भी है। तो जब हम लोगों ने, हमें सब पता है कि गवर्नमेंट ITI है, हर आपके होन्नावर में भी है गवर्नमेंट ITI कॉलेज, कितने लोगों को पता है गवर्नमेंट ITI कॉलेज जो होन्नावर में, भटकल में भी है माशाल्लाह, तो बैंदुर में भी था हमारे यहाँ पे। तो हम वहाँ पे गए जायज़ा लेने कि वहाँ से क्या काम हो रहा है। जब पता चला, पता है आपको कितने % बच्चे मुसलमान कौम के थे उसके अंदर, एक गेस कर सकते हैं? या फिर कभी आप लोगों ने कहीं अपने भटकल के गवर्नमेंट ITI कॉलेजेस में गए थे, या फिर आपको पता होगा, लेस देन 2% हमारे बच्चे ITI के अंदर हैं। इसका मतलब दूसरी कौम जो है फ़ायदा ले रही है, लेकिन हमारी कौम उसकी फ़ायदा नहीं ले रही। तो हम लोगों ने इस पर मेहनत किया, हर मसाजिद में ऐलान लगाए, तब जाकर वो चंद बच्चे जो इसमें एनरोल हुए। और इंटरेस्टिंग पार्ट जब हम लोगों ने इसमें किया, तब हमें पता चला कि देयर आर 2 न्यू कोर्सेज, 2 न्यू कोर्सेज हैं जो टाटा कंपनी, सब जानते हैं ना, मल्टीनेशनल कंपनी है टाटा, रतन टाटा की सदारत में जो है वो लोग जो है 2 नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं गवर्नमेंट ITI कॉलेजेस के अंदर। एक एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड द सेकंड वन इज बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये जो बूम हो रहा है अभी, अब्रॉड में तो ऑलरेडी टेस्ला है, बड़े बड़े कंपनीज हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो बूम हो रहा है, इंडिया में भी बूम हो रहा है। तो अभी से उसकी तैयारी करनी है। तो हम लोगों ने इन बच्चों को जो इन न्यू कोर्सेस में हम लोगों ने उनको एनरोल किया। उम्मीद है इंशाल्लाह जो इनको जो इसी कंपनीज के, क्योंकि स्पॉन्सरशिप टाटा की है, तो डेफिनेटली उन्हीं की कंपनी में उनको जो है जॉब मिलेगा इंशाल्लाह। तो ये सब खिदमत के बहुत सारे वेराइटीज़ हैं। तो वन ऑफ द अप्रोचेस है, आखिर 2 चीज़ हैं, मैं फिनिश करता हूँ, 2 नहीं 3 चीज़ें हैं, ओके। तीसरे एजुकेशन के सिलसिले में, आपको बोर नहीं हो रहा ना? एक 7 मिनट्स लूँगा आपको, बाद में ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह,
ओके। तो एजुकेशन के सिलसिले में हम लोगों ने आपके यहाँ पे भी हुआ होगा कि फेलिसिटेशन, बच्चों को, टॉपर्स को अपने फेलिसिटेट किया होगा, 10th के बच्चों को, 12th के बच्चों को, जो 99 लिए, 98 लिए, 97 लिए, आपके तंजीम के, आपके ऑर्गेनाइजेशंस के ज़रिए से, राइट। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात, हमारे यहाँ पे भी हो रही थी, सालों से हो रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नम्मा वकुटा के सोचने वालों ने सोचा कि ये वही बच्चे हैं जो IAS, IPS, CA, लॉयर्स, डॉक्टर्स, इसकी सलाहियत रखते हैं, राइट। तो इसमें हम लोगों ने जब एनालाइज किया, तकरीबन 100 बच्चे मिले हमें, लेकिन हम हमारे डॉक्टर्स देखते हैं, IAS, IPS जब मिला के देखते हैं तो वो मैच नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं फेल हो रहे बच्चे, कहाँ पे अटक रहे, हालांकि टैलेंटेड बच्चे हैं, राइट। तो हम लोगों ने उनका एक डेटा बनाया और सालाना उनका जो है जलसा, गेट टुगेदर बनाएंगे और इंशाल्लाह जो है प्रोफेशनल ट्रेनर्स के ज़रिए से उनको जो है करियर गाइडेंस जितना भी गाइड करना है उनको, यहाँ तक कि जब तक वो ऊंचे ओहदे में न पहुँचे तब तक हम उनका साथ देंगे इंशाल्लाह। जो भी उनके प्रॉब्लम्स है, एजुकेशनल प्रॉब्लम हो, फिनेंशियल प्रॉब्लम हो, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, हम लोग उनको जो है इंशाल्लाह गाइड करेंगे इंशाल्लाह। ये हमारी एक तरतीब बनेगी इंशाल्लाह। और दूसरा चीज़ जो है स्कॉलरशिप्स के बारे में, हमारे यहाँ पे जब हम गांव में गए तो ऐसे बच्चे मिले जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के बच्चे थे, और आपको पता है कोविड के वजह से कितना फिनेंशियल इम्पैक्ट हो रहा था। यहाँ तक कि बच्चों को हमने देखा कि हमारे इदारों में जो लेटर लिखते हैं कि फ़ीस की प्रॉब्लम है, और फिर जो है कुछ बच्चे जो है ड्रॉप आउट के केसेस तक पहुँच गए, मतलब 10th के या 12th के बाद वो छोड़ना चाहते हैं क्योंकि उनके पास पढ़ने के लिए सलाहियत नहीं है, फिनेंशियल एड नहीं है उनके पास। तो हम लोगों ने उसके बारे में जो है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से, ज़िम्मेदारों से जब डिस्कशन किया तब पता चला कि देयर आर स्कॉलरशिप्स, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप जिसे बोलते हैं, जिसमें नेशनल स्कॉलरशिप होता है, स्टेट स्कॉलरशिप होता है, विद्याश्री होता है, प्राइवेट स्कॉलरशिप, हमदर्द के बहुत सारे स्कॉलरशिप्स होते हैं। तो जब हम लोगों ने जायज़ा लिया कि हमारे लोग बेनिफिट ले रहे हैं या नहीं ले रहे, तो एक तबका हमें ऐसा मिला कि जिनको पता ही नहीं है इन स्कॉलरशिप्स के बारे में, और एक तबका हमें ऐसे मिला जो अप्लाई कर रहे थे और जो उनको पैसे नहीं आ रहा था, इसलिए वो लोग डिसकंटिन्यू किए, अप्लाई करना ही बंद किए। जब हम लोगों ने एनालाइज़ किया कि क्यों नहीं आ रहा था इनको पैसे, तब पता चला ये जो साइबर्स वाले होते हैं, सब साइबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे इलाके के चंद साइबर्स हैं जो 5 साल 6 साल पहले उनका सेटअप हुआ था, तब उनका एक गाइडलाइंस बताया गया था कि स्कॉलरशिप ऐसे ऐसे अप्लाई करना है, वो अभी तक भी वैसे ही करते आ रहे। हालांकि हर साल जो है इसका प्रोसेस, इसका गाइडलाइंस चेंज होता है। तो हम लोगों ने जो है मस्जिद लेवल पे टीम्स बनाए, फिर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट गए, बाकायदा ट्रेनिंग लिए उनके पास, क्योंकि जो एक मोबाइल के अंदर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और हम लोगों ने हमारे मसाजिद में आकर तकरीबन जो है 600 से 800 स्कॉलरशिप जो है बच्चों को हम लोगों ने बना के दिए मस्जिद लेवल में, और हम लोगों ने उनका डेटा भी रखा, क्रेडेंशियल्स, सो दैट जो है 2 महीने में जब सैंक्शन होता है पैसा, हम लोग ट्रैक करेंगे, उसका जायज़ा लेंगे जब तक वो पैसे जो है बच्चे के अकाउंट में डिपॉजिट ना हो जाए। तो एक तरतीब है इंशाल्लाह उसके बारे में। उसके बाद जो है चौथा चीज़, फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट के ज़रिए से मिलता है, हेल्थ सेक्टर में हो या जितने भी हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से हो, इसके बारे में जो है सबसे पहले हेल्थ कार्ड की बात करूंगा आपसे। आयुष्मान कार्ड से कितने लोग जानते हैं आयुष्मान हेल्थ कार्ड के बारे में? आयुष्मान हेल्थ कार्ड, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो है हमारे यहाँ पे जब हम लोगों ने दौरा किया तो पता चला बहुत सारे लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है आयुष्मान के बारे में। तो बताते हैं कि हम लोग ने क्या किया, एक तो कैंप बनाया, लोगों को कार्ड्स तो बनाए, साथ में हम लोगों ने हर आयुष्मान का जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है, डॉक्टर तेजस्विनी करके हमारे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, उनको हम लोगों ने बुलाया, जिसका यूट्यूब लिंक भी आपको शेयर करूँगा इंशाल्लाह मैं उस व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर। तो 30 मिनट्स उन्होंने बात किए, उनमें बहुत सारी चीज़ें हमें पता चला कि आयुष्मान कार्ड जो BPL कार्ड्स होते हैं उनके लिए जो है सालाना 5 लाख रुपए तक जो है सर्जरीज के लिए गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर KMC में भी जाएंगे तब भी मिलेगा आपको, लेकिन जो है उसका एक प्रोसेस होता है, कैसे क्लेम करना है, एंड टू एंड प्रोसेस है, रेफरल लेटर लेना है गवर्नमेंट से, फिर वहाँ जाना है, ये सब तरतीब है इसका। अगर लेकिन इमरजेंसी केसेस हो, एक्सीडेंट केसेस हो, तो आपको ज़रूरत नहीं है रेफरल लेटर का, आप सीधा प्राइवेट में जा सकते हैं। तो ये तरतीब जो है एंड टू एंड हम लोगों को वहाँ पे समझ में आया। हालांकि सालों से आयुष्मान आरोग्य कर्नाटका बोल के सालों से है, लेकिन हमें पता नहीं था उसके बारे में। तो इन्फॉर्मेशन को हमने वहाँ पे पास किया मसाजिद के अंदर। तकरीबन 1,500 जो आयुष्मान कार्ड्स बनाए गए सिर्फ 2 महीने में। यहाँ पे हमारे अब्दुल कादर साहब है मूड गोपाड़ी के, माशाल्लाह उनके मसाजिद में तकरीबन 300 जो आयुष्मान कार्ड उनके सदारत में हुए माशाल्लाह वहाँ पे। तो हम चाहते हैं कि जो हमारी सारी उम्मत जो है हमारे पैसों के, जैसे
किसी गरीब को ऐसे हेल्थ का प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मस्जिद का लेटर लेते हैं, इदारों के पास से लेते हैं। पैसे किसका जा रहा है, मुसलमान का वहीं पे जा रहा है, राइट। अगर इसके बजाय अगर हम लोग गवर्नमेंट से लेने वाले बनेंगे तो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस के पैसे इंशाल्लाह दूसरे अच्छी चीज़ों में भी लगा सकते। ऐसा मना नहीं कर रहा हूँ मैं इस चीज़ को, जो फर्स्ट प्रेफरेंस जो इंशाल्लाह गवर्नमेंट से लेने वाले बने, उसके बाद में जो हमारे इदारों के पैसे हम लोग इंशाल्लाह लेंगे।